Okay, welcome all. Here we go. Today we'll discuss the share capital. Okay. Welcome to the 130 participants. Here we go. Just confirming. Am I audible, dear students? Yes, sir. Yes, sir. What are you watching on the screen? Sir, share capital Share and issue of capital and share. issue of shares. Share. Yes. Yes. And the person those who have the problem to access this system, this technology, they need to consult their friends. They need to ask their friends how it should be used. And again, I am saying one thing that listen here. These things are default. By your common sense, you should know that. Okay, when you have when you have nothing to say, just turn off your mic. Understand the person? Nothing to show, then turn off your camera because this creates the technical problem. Understand the points because that flows the data that needs the data consumption. That's why this meeting may be interrupted. Number 3, and there is option by touching on the 3 dot icon. There is an option of present. You need not to present. Presentation means you are a presenter. You have to present your own screen. Understand the what I am doing. So I am the presenter, so I will show you the things. Understand the while the moment you started presentation, now you will conduct the meeting. Understand the points? You will show the things. That's why I'll be bound to remove you. Share capital, and we'll discuss the issue of shares. Understand? Now select my presentation ID. Types of shares, so many things are the types of share. We'll discuss the issue of shares. There is some provisions for issue. Provisions for issue, not in an elaborative way because we are not studying the company law. Na? Understand the point. Next to it, you have the journal entries, the accounting entries for the issue of the shares. Understand? And types of shares also there. That will be discussed in various types of shares also there. This much of thing is our agenda. Share capital of a company. Okay. The sum total of the nominal value. Here said the nominal value. Okay. Paid up value also I will say. Of the shares of a company is called as its share capital. Understand the point? That means listen one thing. You already know what is company discussed. You know what is share capital also. You know what is share capital also. Okay, from the class 11th you have been studying. So शेयर कैपिटल आपको क्या है पता है? दो चीजें हैं, सिर्फ और सिर्फ शेयर कैपिटल कहा जा रहा है. तो you can say the sum total of nominal value. You can say when there is the concept of paid up share capital, at that point you will say the total paid up capital. Understand the point? Total paid up capital. And in generally, if you wish to say which is actual capital to be considered for all these things, paid up capital only. This is the confirmation, only the paid up capital. The share capital of the company may be of two kinds. You already know: preference share capital and equity share capital. Understand? Now look at here. Preference share capital. Preference share means it denotes to the share having the preferential rights. Will be discussed later. Now, what is meant by the preference share capital? That means all the sum total of the amount of the preference share, that is preference share capital. It is the sum total of the nominal value of the preference share of the company. Understand the points? Next to it, equity share. Equity share means these are the shares having the rights of owners. These are called the equity share. Now equity share capital means the sum total of the nominal value of the equity shares is called the equity share capital. That means ये चीज शेयर्स होते हैं और सारे शेयर्स को मिला करके उस सम टोटल जो होता है ये कैपिटल होता है. अंडरस्टैंड द पॉइंट? तो इक्विटी शेयर कैपिटल और इक्विटी शेयर डिफरेंट थिंग है. नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर फ्रॉम व्हिच पॉइंट ऑफ व्यू? फ्रॉम फ्लो. पहले मतलब ऑथराइजेशन होता है, उसके बाद इशूड होता है, पेड अप होता है. सो फ्रॉम द दैट मींस की कलेक्शन ऑफ द कैपिटल पॉइंट ऑफ व्यू, क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल. अंडरस्टैंड? क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर इज समथिंग एल्स. इक्विटी शेयर कैपिटल, equity share, preference share, deferred share. Classification of share. Classification of share capital means
Now buy altogether all the equity shares. You have the equity share capital. Now how would you like to classify stage by stage, frame by frame? That is called the classification of the share capital. So don't be confused. Classification of share, equity share preference share, classification of share capital is authorized capital, issued capital, all these things. Understand the point? First, I might have a diagram. This thing. First, I'll try to understand this thing. Like classification of share capital. That means, first of all, we have a company. A company started by some promoters, by some individuals. Understand the points? But for the growth and development of the company, for production and all these things, company needs capital. Company needs capital. So company needs capital. So company simply advertise. Company simply advertise to the public. Here one thing I wish to say. अच्छा कल की जो confusion था वो भी हम बता देंगे. From here onwards, from here in when I will be saying company, you have to understand only and only public limited company. Only and only public limited company having the rights to issue shares in open market, having the rights to raise capital from the public. Understand the points? Because the private company is the closed company one, private company one having no right to issue shares from the public. Understand the points? Now look at it. So whenever I am saying a company, that means you stick to the public company. This is the thing. Understand the points? So hereinafter we will be studying only the public limited company. Private limited company कुछ चीजें बाद में हम बता देंगे. Understand the points? क्योंकि प्राइवेट कंपनी के अकाउंट्स वगैरह कंपनी लॉ में बहुत डिस्क्रिप्टिव वे में वो चीज नहीं है. यही बात था, इसलिए कल हमने ये चीज बताई. तो पब्लिक कंपनी ठीक है, अब पब्लिक लिमिटेड कंपनी यहाँ पर आया तो फिर हम उसमें क्लैरिफिकेशन दे देते हैं. ठीक है ना? पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कोई भी अनलिमिटेड कंपनी नहीं है, होगा नहीं आज तक. हर एक चीज सब्जेक्ट मतलब थिंग सब्जेक्ट टू चेंज, होगा नहीं अब तक मेरा ख्याल से. प्राइवेट कंपनियां हो सकते हैं, यस. तो दैट माइट बी योर कंफ्यूजन. So I was explaining for the public limited company. Understand the points? Public limited company सिस्टमेटिक होते हैं, ये हमेशा लिमिटेड होते हैं. यहाँ पे अनलिमिटेड शायद नहीं होगा अभी तक, आप ढूंढ सकते हो. प्राइवेट कंपनी हो सकते हैं माइट. तो नाउ लुक एट हियर पब्लिक लिमिटेड कंपनी. ये once I have to erase these things. Now company raised an advertisement that will be discussed later to the public. Now public will start subscribing the capital. So first of all look at here, the first point here started with the authorized capital. You have already studied, but आपको क्या होता है कि ये क्वेश्चन आने वाला है, ये सवाल. तो अगेन I here I wish to recite the thing, repeat the thing. Authorized capital, what is meant by the authorized capital? Authorized मतलब permitted, this much of permitted. Understand the point? Understand the points? Don't stick to those meaning and definition which you have been reciting since years. Understand the points? आगे का सीखो, आगे का सोचो. Authorized means this much of permitted, this much of authorized by whom? By ROC, by government of India. Understand the points? By government of India. This much of capital you can issue in the public. Understand the point? This much of capital you can issue to the public. That means this is their maximum capital. ये आगे डिस्कस होगा, ये आगे डिस्कस होगा, सिर्फ हम बता रहे हैं. तो इतना आपको मिला था, सपोज इतना आपको परमिशन मिला था. यहाँ पर हम लिखते हैं 100 लाख. 100 लाख मीन्स 1 करोड़. ठीक है? तो यहाँ पर आपको ऑथोराइज्ड कैपिटल दिस मच थ्रू द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी, दिस मच ऑफ कैपिटल यू कैन इशू. अच्छा, साथ ही साथ हम इसको डिस्कस कर दे तब भी अच्छा हो. Now look at here authorized capital. It is the maximum amount of capital. Number one, maximum amount of capital which a company can raise or issue for the time being. अभी के लिए, yes, अभी के लिए, yes, authorized capital may be extended
by creating provision and getting the permission from the central government of India. Understand the point? तो ऑथराइज कैपिटल कैन आल्सो बी एक्सटेंडेड। तो यहाँ पे लॉ नहीं है, यहाँ पे हम अकाउंट्स पढ़ेंगे। इट इज मेंशन्ड इन द कंपनीज मेमोरेंडम and is called the nominal or registered capital. Number one, this is the maximum capital for the time being, can be extended with the permission of the CG, and it is written mentioned in the memorandum of the company at the time of registration of the company. This is what called the nominal or registered capital. Understand the points? That means this is your permission. You need not to issue the entire, but this is your permission. Now look at here. 100 lakh is your permitted shares you can issue at current scenario, but suppose उसमें से हम 80 लाख इशू किए, ध्यान से 80 लाख इशू किए, ठीक है। अब अनइश्यूड कैपिटल कितना रहा? 20 लाख। तो when you are watching a thing, keep making notes but I am dictating, feed this exact figure and exact scenario, exact thing, exact example in your mind. This will be pasted in the examination. You need not to put any extra effort further. Understand the point? And you will watch it sincerely, attentively. Then this will be obviously printed in your mind. That will be depicted, pasted on your examination paper directly. 80 लाख हम इशू किए, इशू नहीं किए 20 लाख। ठीक है, हम जितना इशू करेंगे, हम जितना भी माल लिए हैं बाजार को बेचने के लिए, सब कुछ तो नहीं बेचे जाएंगे ना। तो इशूड कैपिटल से 80 लाख से मान लो 60 लाख हम लोग सब्सक्राइब किए, 20 लाख सब्सक्राइब नहीं किए, ठीक है। तो ये सब्सक्राइब कैपिटल हुआ, ये अनसब्सक्राइब कैपिटल हुआ। जो 60 लाख हम लोगों को बेच के तुरंत पेमेंट नहीं होता है, तुरंत पैसा उसमें नहीं मिलता है, उसमें से हम मांगे, डिमांड किए, कितना डिमांड किए? 60 लाख अभी तक डिमांड किए हैं 50 लाख। तो जितना हम डिमांड किए वो कॉल्ड अप कैपिटल है, जितना हम डिमांड नहीं किए हैं वो अनकॉल्ड कैपिटल है। किया हुआ कोई बात नहीं, अनकॉल्ड कैपिटल कहते हैं। जितना हम पैसा लोगों को मांगेंगे, जरूरी नहीं कि सारे के सारे पैसा हमको मिल जाएगा। तो जितना पैसा दे दिए लोग वो पेड अप कैपिटल होता है, जितना पैसा नहीं दिए वो अनपेड कैपिटल होता है और कॉल्स इन एरियर होता है। तो ये है अनपेड कैपिटल और कॉल्स इन एरियर होता है, ठीक है बाबू। सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमको इतना परमिशन दिए थे 100 लाख, हम कुछ इशू कर सकते हैं, कुछ इशू नहीं कर सकते हैं। 80 लाख इशू किए, 20 लाख अपने हाथ में रखे हैं। हाँ, इशू होगा ना कभी इशू होगा, इस मुद्दे पे हम आएंगे, यहाँ पे आएंगे, ठीक है बाबू। आगे चलो। जितना हम इशू किए बाजार में सबको ही नहीं खरीदेंगे लोग, जितना खरीद लिए उसको सब्सक्राइब्ड कैपिटल कहते हैं 60 लाख, जितना नहीं खरीदे दैट इज 20 lakhs. At all the time do not make yourself so mechanism. Understand the points? Do not use those accounting terminologies only, that doesn't give any sense. आप अपने हिसाब से सोचो, बाजार गए, खरीदे, सब्जी बेचे, अंडरस्टैंड द पॉइंट, दैट गिव्स यू मोर सेंस। ऐसे याद रखने के लिए कोशिश करो, बाद में ऑटोमेटिकली यू विल वर्क आउट द थिंग्स विल बी गोस्ट आउट फ्रॉम योर माउथ, बाद में ऑटोमेटिकली आपको पता चल ही जाएगा। सब्सक्राइब्ड कैपिटल इतना हुआ, अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल इतना हुआ, इतना खरीद लिए लोग, इतना नहीं खरीदे। कंपनी की पॉलिसी ही करोड़ों का पैसा है, एक दिन में कैसे लोग दे सकते हैं, तो हम उनको पैसा डिमांड करते हैं। तो 60 लाख लोगों को माल बेचे हैं, 50 लाख डिमांड किए हैं, तो अभी तक हम 10 लाख डिमांड नहीं किए हैं। जितना पैसा मांगेंगे उनको कॉल्ड अप कैपिटल कहा जाएगा। कॉल्ड अप का मतलब वही होता है ना, हम कॉल कर रहे हैं पैसा दो। फिर कॉल्ड अप कैपिटल से जितना पैसा मिल गया अभी तक 40, वो पेड अप कैपिटल हो गया। जितना पैसा नहीं मिला वो अनकॉल्ड कैपिटल हुआ, या फिर उधारी उसको कहते हैं, दैट इज कॉल्स इन एरियर। अंडरस्टैंड द पॉइंट? अभी वही चीज लिखा हुआ है, आप देख लो थियरी में। ऑथराइज कैपिटल वो होता है मैक्सिमम कैपिटल। नेक्स्ट इशूड, तो इट इज द पार्ट ऑफ ऑथराइज कैपिटल, दैट मींस कि जितना ऑथराइज कैपिटल है उसमें से इट इज ए पार्ट ऑफ, उसी में से एक हिस्सा है इशूड कैपिटल, जो कि क्या हुआ देखो, रिप्रेजेंटेड बाय द नॉमिनल वैल्यू ऑफ the shares allotted per cash, the shares consideration other than cash, the shares subscribed by the signatories to the company of the memorandum। तो ऑल टुगेदर सारे के सारे इशूड शेयर कैपिटल किसको कहते हैं? ठीक है, इशूड शेयर कैपिटल किसको कहते हैं? रखो दोनों, रखो उठा। तो look at here, issued capital, that means कि it is the sum total of the capital
combining the all types of parties. Some capital we have issued as cash, some capital issued for the consideration other than cash. That means कि जमीन के लिए, एसेट के लिए भी हम शेयर इशू कर सकते हैं, और कुछ हमारे जो अपने ही सिग्नेटरीज ऑफ द कंपनीज मेमोरेंडम, दैट मींस कि पहले they have to compulsory subscribe some share. क्यों? क्योंकि आप ही दुकान खोल रहे हो, ठीक है, और आप दो ब्रदर्स इसका मतलब इस दुकान की मेन हिस्सेदार हो। आप कहोगे हम ही इन्वेस्ट नहीं करेंगे और सारे के सारे बैंक से पैसा लेंगे और मार्केट से उधारी लेकर के काम करेंगे, सो जो ओनर है उनका पैसा नहीं है, और लोग कैसे भरोसा करेंगे आपकी उस बिजनेस पे, जब जिस घर पे आपका खुद का इन्वेस्टमेंट नहीं है उस पे बैंक भी इन्वेस्टमेंट नहीं देगा। पता है आपको, जब बैंक की घर की एस्टिमेट होगा, मान लो घर की एस्टिमेट होगा 50 लाख, जब घर की एस्टिमेट होगा 50 लाख, बैंक विल फाइनेंस अप टू द 80%, टू द एक्सटेंट ऑफ 80%। तो 50 लाख का 80% कितना हुआ? 40 लाख। 40 लाख अप टू द 40 lakhs बैंक विल प्रोवाइड यू द लोन। अंडरस्टैंड? दैट मींस another 10 lakh you have to spend। खुद का पैसा घर में नहीं लगेगा ना तो बैंक भी लोन नहीं देगा। क्यों? क्योंकि इस घर के ऊपर आपका कोई लगाव नहीं है, कुछ आस्था नहीं है, तो फिर घर कभी बेच जाएगा, घर कभी टूट जाएगा, तब भी आप बैंक का लोन नहीं चुकता करोगे ना। दैट्स व्हाई फर्स्ट खुद को शेयर सब्सक्रिप्शन करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट इट सब्सक्राइब्ड कैपिटल। तो फ्लो है ऑथराइज कैपिटल, issued capital, then subscribed capital. So it is, look at here, it presents the paid up value of the issued share capital। issued share capital का हिस्सा है। In case of shares fully paid, then issued capital and subscribed capital will be the same। अरे फालतू लिखे हुए लिखो, it is the part of the issued share capital which is subscribed by the public। सीधी बात, जो कि पब्लिक सब्सक्राइब किए हैं। एंड यहाँ पे आएगा अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल, जैसे कि हम बताए थे। सो अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल क्या चीज है ना? इशूड शेयर कैपिटल की वो पार्ट है व्हिच इज नॉट ना। लुक एट हियर कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल मींस अगेन वो चीज आएगा। कॉल्ड अप कैपिटल यहाँ पे देख लो, तो ये कॉल्ड अप कैपिटल इज पार्ट ऑफ सब्सक्राइब्ड कैपिटल, इज पार्ट ऑफ सब्सक्राइब्ड कैपिटल व्हिच अमाउंट ऑन व्हिच शेयर इज कॉल्ड अप। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स? अनकॉल्ड कैपिटल, it is the part of that subscribed capital which is not yet called for payment। Understand? एग्जाम्पल दिए हैं, 10 रुपया का शेयर है मान लो, एंड कंपनी तो 10 will be included in the purpose of calculating subscribed capital which is the called up capital। Understand the point? 10 रुपया का एक शेयर तो 4 रुपीज हो गया अनकॉल्ड कैपिटल। पेड अप कैपिटल, दैट मींस ये कॉल अप कैपिटल की वो हिस्सा है जो अभी तक पेमेंट हो चुका है। राइट डाउन, इट इज द पार्ट ऑफ द कॉल्ड अप कैपिटल व्हिच इज ऑलरेडी पेड अप बाय द सब्सक्राइबर। और यहाँ पे आएगा अनपेड, यहाँ पे आएगा देखो आप थोड़ा अनपेड कैपिटल, यहाँ पे आएगा अनपेड कैपिटल, ठीक है। उसको कहा जाता है कॉल्स इन एरियर। इसके लिए लिखो, तो अनपेड कैपिटल क्या है? इट इज द पार्ट ऑफ दैट सब्सक्राइब्ड कैपिटल व्हिच हैज नॉट येट पेड अप, स्टिल इट इज इन एरियर। अंडरस्टैंड? और एग्जांपल ऑफ हर एक चीज में जो देख, सुनिए, आपको बार बार एक चीज को समझाने में क्या फायदा, मतलब कुछ नहीं। जो एग्जांपल यहाँ पे हम दिए, ऑथराइज कैपिटल ऑफ 100 लाख से स्टार्ट करोगे, डिवाइड करते करते लास्ट में कॉल्स इन एरियर तक आप आ जाने हैं, ठीक है। नाउ रिजर्व्ड कैपिटल, यहीं पे हमको आना है। देखो, ऑथराइज कैपिटल की वो हिस्सा अभी तक, ठीक है, जो इशू हुआ, फिर सब्सक्राइब हुआ, कॉल हुआ, पेड हुआ, जो अभी तक इशू नहीं हुआ 20 लाख, व्हाट अबाउट दिस 20 लाख? लुक एट हियर, अगेन दिस हैज टू पार्ट्स, अगेन दिस हैज टू पार्ट्स। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स? one is reserved capital, one is reserved capital, another is unreserved capital, another is one reserved capital। So look at it, that means कि ये वो 20 लाख का हिस्सा है जो अभी तक इशू नहीं हुआ है। उस 20 लाख में से, उस 20 लाख में से रिजर्व्ड कितना है पता है? 5 लाख, और अनरिजर्व्ड है 15 लाख। समझाइए सर, ये 5 लाख जो रिजर्व्ड कैपिटल है, ये इशू होंगे भी नहीं, कभी तो इशू होंगे। यस, एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी एंड लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी, एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी एंड लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी।
when there is not any utmost necessary, the ultimate necessary, when company sunk into the crisis, at that time by passing a resolution, this capital may be issued, this 5 lakhs rupees. Understand the point? That means कि this much of capital is kept reserved for, लिखो, सिनेमा देख रहे हो, this much of capital is kept reserved for issuing at the time of the point emergency and liquidation and crisis of the company. Understand the point? Which is unreserved company? Yes. Anyone saying anything? Having any doubt, query? Otherwise, turn off your mic. Next, unreserved capital means this much of capital अभी इशू नहीं हुए हैं. इस 20 लाख में से 15 लाख अभी इशू नहीं हुए हैं, लेकिन इशू हो जाएंगे. दिस विल बी इशूड इन नियर फ्यूचर. अभी इशू नहीं हुए, लेकिन नियर अपकमिंग ईयर्स में इशू हो जाएंगे. बिकॉज एट वंस सारे आप इसमें कर सकते हो ना, उसका भी तो लिमिटेशन है. तो अनरिजर्व्ड कैपिटल फॉर द टाइम बिंग नॉट येट इशूड बट विल बी issued in upcoming years. Next, meaning and types of shares you already know. Understand the points? कंपनी का जितना भी टोटल शेयर किसको कहते हैं, पहले लिखा हुआ कुछ चीज. कंपनी का टोटल कैपिटल इक्वल पार्ट्स में जब आप डिवाइड करते हो, एक हिस्सा को शेयर कहा जाता है. अंडरस्टैंड द पॉइंट्स? यूनिट ऑफ कैपिटल. नेक्स्ट इट, होल्डर्स को शेयर होल्डर्स कहा जाता है. एक डिनोमिनेटेड वैल्यू, दैट मींस एक हिस्सा को आप लिए 10 रुपया, एक हिस्सा को 10-10 रुपया. ये एक जो डिनोमिनेशन है उसको कहा जाता है नॉमिनल वैल्यू और फेस वैल्यू. एंड द टोटल फेस वैल्यू ऑफ ऑल द प्रेजेंटेड कैपिटल ऑफ द कंपनी, ये सारे मिल करके, ये जोड़ करके सारे अंडे होते हैं शेयर कैपिटल. ये सारे के सारे मिल करके शेयर कैपिटल होते हैं. द शेयर्स व्हिच कैन बी इशूड बाय ए कंपनी आर ऑफ टू टाइप्स. एक है प्रेफरेंस शेयर, एक है इक्विटी शेयर. अंडरस्टैंड द पॉइंट? प्रेफरेंस शेयर्स एंड इक्विटी शेयर्स, दो प्रकार के शेयर से ये बात है. नंबर 3, डेफर्ड शेयर भी है, हैविंग द फीचर्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर आल्सो, इक्विटी शेयर्स आल्सो. अंडरस्टैंड द पॉइंट? टू टाइप्स ऑफ फीचर ऑलरेडी यू हैव read it. Next, preference shares in short, because you have been reading all these things since years. Preference shares. Now preference shares having two preferential rights. Understand the points? क्या? Paid dividend and return of capital. They will get it fastly. They have the preference over equity shareholders. Understand the points? The preference shareholders are those type of holders having the preferential rights. Now how many? Now 2 preferential right over the payment of dividend also, over the payment of capital also. That means जिसको अभी तक समझ नहीं है वो बताते हैं. ये वो मेहमान हैं, ये मालिक नहीं है. मेहमानी इन्वेस्टर्स हैं जिनको डिविडेंड जब भी बांटा जाएगा सबसे पहले मिलेगा, बचेगा तो इक्विटी शेयरहोल्डर को दिया जाएगा. कैपिटल जब कतार लगा के मतलब बांटे जाएंगे, कभी तो कंपनी डिसोल्यूशन होगा, कभी तो कंपनी लिक्विडेशन होगा, सब चीज मतलब लाइन में आ जाएंगे, खड़ा करके पैसा मांगते रहेंगे, हमको दे दो. समझ में आई बात? उस टाइम में कैपिटल क्या किए जाएंगे, सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दिए जाएंगे, कुछ बचेगा तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को दिए जाएंगे. दिस इज बट टेक्निकली कॉल्ड इन इंग्लिश आज द प्रेफरेंशियल राइट्स ओवर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड ओवर द पेमेंट ऑफ कैपिटल. नाउ टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स ऑलरेडी नो. अंडरस्टैंड? My presentation is visible, Babu? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. There is no such interruption, na? Yesterday, that may be a rainy day. सही कुछ बारिश हो रहा था, कोई मौसम खराब था, नेटवर्क प्रॉब्लम था. अभी भी आज भी होगा, दोपहर को हमेशा होता है नेटवर्क प्रॉब्लम, होगा वो तो बात है. ऑनलाइन दुनिया आ जाने में क्या होगा, ऑनलाइन होगा तब ना, यहाँ पर ऑनलाइन होगा तब ना कुछ कर सकते हो. ठीक है ना?
इस ऑनलाइन ऑनलाइन के चक्कर में हम भी एक तो मतलब देखो बहुत अच्छा डोमेन खरीद लिए हैं, ठीक है। हाँ, इन नियर अपकमिंग डेज आई एम बिल्डिंग माय वेबसाइट। having the name of the website is very much interesting, you know, that is dhirensar.online. Understand the concept? Dot online, because it's a very that gives a feel of Dhirensar came online now. It's the time of study. Understand the concept? And my new email address is this one. You can email me on this platform for the personal query and guidance. commerce@dhirensar.online. Types of preference shares. Look at here. Types of preference shares. You already know. Cumulative preference share, non-cumulative preference share. Cumulative, what is meant by the cumulative? Accumulation. Accumulation. Keep accumulating. Understand the points? एक साल में प्रॉफिट आपको नहीं मिला, अगर वो अक्रू होता है, कैरी फॉरवर्ड हो जाता है नेक्स्ट ईयर को, वो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होता है। नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर क्या होता है? अगर आपके प्रॉफिट इस साल नहीं मिला तो फिर आपको और कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगे आपके डिविडेंड्स, ठीक है। कन्वर्टिबल, दैट मींस इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू द इक्विटी शेयर्स। नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर, दैट मींस कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू द इक्विटी शेयर्स। These are only the 2 marks question. 2 marks question. Rarely you will find a long question of the types of preference share. You will not find. Which will be the long question? I will state it. Now look at here. Types of preference share is the question of 2 marks. Right on? 2 marks question, types of preference shares. Understand the point? I will be stating the long question. Now look at here. Participating and non-participating preference. Somewhere क्या होता है कि some rights are given to the preference share. So those who can participate in the management and meeting, these are participating. Understand the point? After meeting लिखा हुआ है. And participating and non-participating का और भी एक मतलब है. From the dividend point of view, after having a surplus, again they can participate to the surplus dividend also. तो यहाँ पे क्या होता है? They having the more reliance, more flexibility. First, dividend is paid to the preference shareholder, then dividend is paid to the equity shareholder. Now, equity shareholders के लिए जितना हिस्सा बच रहा है, इसमें से अगेन प्रेफरेंस शेयर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो जो पार्टिसिपेट कर सकते हैं उनको पार्टिसिपेटिंग कहेंगे, जो नहीं कर सकते उनको नॉन पार्टिसिपेटिंग कहेंगे। तो सिंपली बात, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स having the rights to participate in the share of the profits, residual profit for the equity shareholder. एक हिस्सा यहाँ पे ले जाएंगे सारे के सारे प्रेफरेंस शेयर होल्डर, एंड जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर का राइट्स होगा वो फिर से कतार में लगेंगे इक्विटी शेयर होल्डर्स के साथ, और वो फिर से कुछ हिस्सा अपने से ले सकते हैं। दैट मींस यू कैन से द पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर वालों को थोड़ा ज्यादा डिविडेंड मिलता है। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स? नाउ रिडीमेबल एंड इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। एक्चुअली देखिए, फिर से आप वही चीज बोलने वाले हो, लेकिन हम कॉमन चीज आपको समझाएंगे। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, दैट मींस कि इट हैज द टाइम लिमिट, टाइम बैर, कि ये रिडेम्पशन होंगे ही होंगे आफ्टर 5 years, 10 years एंड मैक्सिमम टू 20 years. अंडरस्टैंड द पॉइंट? ये रिडीमेबल, रिडेम्पशन होंगे ही होंगे। इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, दैट मींस दिस प्रेफरेंस शेयर कैन नॉट बी रिडीम्ड। अंडरस्टैंड द पॉइंट? इन जनरली कैन नॉट बी रिडीम्ड थ्रू आउट द शेयर्स पीरियड, company's period. This is the concept, but this doesn't happen in reality. Somewhere I have to state you the things out of box, you know. Reality हमको बताना ही पड़ेगा. No company can issue irredeemable preference share at the current time. ना आपको इशू हुए हैं, तो पहले इशू हुए होंगे, इसके बाद कंपनी लोग का भी परमिशन दिया होगा। एवरीथिंग सब्जेक्ट टू द परमिशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, बट जनरल एस्पेक्ट आपको लिखना है। और बुक में जो एक्सेप्शनल होता है ना, कहीं पे भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। यू कैन फाइंड एनीवेयर, बट आपको जनरली जो चीजें इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं होते हैं, इसके लिए रेस्ट्रिक्शन है। क्योंकि आप कोई भी इन्वेस्टर्स को ऐसा नहीं कह सकते कि आपके पैसा कभी वापसी नहीं होगा, उसको कैसे लगेगा? Everyone has the need, everyone has the right to get back their money. You cannot say like that. That's why redeemable preference share means the capital of whom can be redeemed after a certain period of time, and maximum can be extended to 20 years. Irredeemable preference share, the capital of whom cannot be redeemed throughout the lifetime, but this cannot be possible. Understand the points? Types of preference share the. Now issue of shares. Now this is the thing, issue of shares. Write down the question. Write down the questions.
state the provisions regarding issue of shares. अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। और ये सारे के सारे चीजें हम पब्लिक कंपनी के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। वही बात है, फिर से आप कुछ चीज प्राइवेट कंपनी के उठा के देखोगे, सर ये तो है, अरे हम पब्लिक कंपनी के लिए पढ़ रहे हैं। स्टेट द बिजनेस रिगार्डिंग द इश्यू ऑफ provisions regarding the issue of shares. Okay, I'll just to cross check the line. 116 are there. Abhi Sharma, Divya Patra, so you're back again. Come to the screen. Are you seeing? Is it visible? Yes, student. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्या पढ़ रहे हैं? क्या लिखा हुआ है? Yes, sir. Issue of shares. Very good. Issue of share. चलिए सब कोई सुन रहे हैं, एटलीस्ट इतना तो चेक हो गया कि देख रहे हैं। ना look at it. Obviously you can make, ठीक है, कहीं ना कहीं ये भी कोई ऑथराइज सोर्सेस से बुक्स, टेक्स्ट, ठीक है ना, जो टेक्स्ट बुक्स है उसमें से काफी चीज कुछ टाइप किए गए हैं, कुछ चीजें उसमें से मतलब यहाँ पे लिंक किए गए हैं। यू कैन मेक स्क्रीनशॉट ऑफ ऑल दीज थिंग्स। डोंट रिकॉर्ड द एंटायर क्लास, you have no permission at all. If you attempt so, you will be removed automatically the system. That's why something you are using any third party, you know, or something else, but you are doing any piracy and you are interfering any privacy to the your camera to this application, they will automatically remove. Understand this problem? You might have problem of watching the presentation, etc. You can make screenshot of these things. It can use it for the personal use. Understand the point? Nowhere you can assign your credit. This is the only thing. Okay. You can make screenshot and can share with your friends. No problem. But you cannot record the entire session. Issue of shares. Look at it. When a public limited company gets the certificate of incorporation, look at it. This is very, so you have to keep that this flow also. So first of all, public limited company, because the public limited company has only the authority to issue the shares. तो पहले सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आपको गेन करना चाहिए, देन आपको प्रोस्पेक्टस इशू करना होगा। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स? और नहीं तो जो प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करते हैं, ये कर सकते हैं स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग द पब्लिक टू सब्सक्राइब टू द शेयर कैपिटल। तो प्रोस्पेक्टस करके आप शेयर कैपिटल के लिए अब कॉल करोगे। प्रोस्पेक्टस सिंपली एक इनविटेशन टू ऑफर होता है। दैट मींस कि यू मेक ऑफर। व्हाट इज ऑफर एंड इनविटेशन टू ऑफर? Look at it. What is offer? Look at. So you wish to take my mobile phone, please take it at a cost of rupees 10,000. This is offer. Understand the points? This is offer. Understood? Now I will publish an advertisement that please give me tender. Give me tender. So many people are interested. बहुत सारे people interested हैं, वो टेंडर देंगे। समझ में आई बात? ऑक्शन पे आएंगे, टेंडर देंगे, उसके बाद जो सबसे ज्यादा बीड देगा उसको हम मोबाइल फोन दे देंगे। अंडरस्टैंड द पॉइंट? तो इसको कहते हैं इनविटेशन टू ऑफर। दैट मींस डायरेक्टली हम ऑफर नहीं किए, आप दोगे ऑफर,
हम करेंगे एक्सेप्टेंस, ये बात है। तो डॉक्यूमेंट ऑफ प्रोस्पेक्टस इज एन इन्विटेशन टू ऑफर, ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में और लॉ में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। इफ वन इज इंटरेस्टेड एप्लीकेशन प्रिस्क्राइब्ड देन कंपनी, ये फिल करेंगे एप्लीकेशन, साइन करेंगे, देन कंपनी को प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट के साथ आपको भेजना होगा। एप्लीकेशन जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंसीडर करेंगे, एक्सेप्टेंस होगा, रिजेक्शन होगा, ये बीओडी के ऊपर डिपेंड करता है, आप क्लेम नहीं कर सकते हो। तो सबसे पहले आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, फिर आप पब्लिक में एडवर्टाइजमेंट करेंगे, उस डॉक्यूमेंट का नाम होगा प्रोस्पेक्टस, वो इन्विटेशन टू ऑफर होता है, फिर आप प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट भर करके, प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट भर करके कंपनी को सेंड करेंगे, एंड बीओडी का पावर है, आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो सकता है, रिजेक्ट हो सकता है। ऑब्वियसली हर एक का रीजनेबल टाइम होता है। इफ द शेयर कैपिटल एक्सेप्टेड, तो ये कंपनी एक्सेप्ट होता है तो आपको अलॉट कहा जाता है, उसको अलॉटमेंट कहा जाता है। अगर आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट होता है, आपको शेयर मिलता है, दिस इज अलॉटमेंट कहा जाता है। एंड यू विल इमीडिएटली एंटर इनटू एन कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द कंपनी एंड द एप्लीकेंट, यू बिकम द सिंपली शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। अंडरस्टैंड द पॉइंट? तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट शुरू हो जाता है, आपकी लाइबिलिटी शुरू हो जाता है कंपनी की ओर से। नेक्स्ट, द अलॉटमेंट मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द पर्सन लीगली टू कंप्लीट, ये तो होता ही है हर एक कॉन्ट्रैक्ट में। अब जब देखो हर एक कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है बाबू, आपको पता है, ये ऑफर ही होते हैं। जब आप दूसरे को कम्युनिकेट करते हो, एक्सेप्टेंस हो गया तो एक्सेप्टेंस को फिर से कम्युनिकेट करते हो, तब जाकर के ये कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हुआ माना जाता है, कंप्लीट हुआ माना जाता है। तो मोस्टली कम्युनिकेट। नेक्स्ट, प्रोविजंस फॉर इशू ऑफ शेयर्स, ठीक है, जैसे हम बताए थे शेयर कैपिटल के बारे में आप लिखोगे क्वेश्चन, इशू ऑफ शेयर्स के प्रोविजन सब लिखोगे। प्रोस्पेक्टस में क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स इशूड और ऑफर टू द पब्लिक, ये लिखना चाहिए। एक्सेस एप्लीकेशन जो भी इशू हो रहे हैं, आपकी रिजेक्ट हो रहे हैं, उसके एक रिकॉर्ड रहेगा, इन डिटेल नहीं लिखा हुआ। द एक्सेस एप्लीकेशन रिसीव्ड रिसीव्ड शेयर टू बी रिजेक्टेड, तो उसको अलग एक बैंक अकाउंट खाता खोला जाता है, उसमें पैसा रखा जाता है। अंडरस्टैंड द पॉइंट? प्रोस्पेक्टस मोस्ट कंटेन द मिनिमम सब्सक्रिप्शन, अभी तो कंटिन्यू है। मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या है उसमें लिखना चाहिए, दैट मींस कि दिस मच ऑफ शेयर्स मस्ट बी सब्सक्राइब्ड, अदरवाइज द एंटायर सब्सक्रिप्शन विल बी कैंसल्ड। चलिए एग्जांपल के तौर पे 100 लाख रुपया कैपिटल हम बाजार में छोड़ रहे हैं। अंडरस्टैंड द पॉइंट? 100 लाख रुपया का कैपिटल, ठीक है, तो उसमें से हम मान लेते हैं मिनिमम कितना होना चाहिए, मिनिमम कितना, एक्चुअली ज्यादा होता है, 40 लाख तरफ हम ले लेते हैं, तो 40 लाख शुड बी मिनिमम सब्सक्राइब्ड। एग्जाम्पल था, आजकल डेट में तो डायरेक्ट 90% मोस्टली सब्सक्राइब्ड। अंडरस्टैंड द पॉइंट? सुनिए, हर एक का लॉ एस्पेक्ट पता है, चीजें है, कुछ कुछ चीजें एग्जाम्पल तौर पे जो देते हैं, यू विल बिकम मोर टू रिडिकुलस टू रिजिड, तो अब थियोरी नहीं लिख पाओगे। मिनिमम 90% मोस्टली सब्सक्राइब्ड, बट हर एक जगह में यहाँ पे जब चाहिए नहीं, अब लॉ में नहीं घुसना है। तो देखो 100 लाख हम यहाँ पे फिक्स कर रहे हैं कि 40 लाख मोस्ट भी सब्सक्राइब, अगर सब्सक्राइब होना ही है, नहीं होता है तो एंटायर इशू कैंसिल करना पड़ जाता है। तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या आपको लिखना पड़ेगा। एक तो बात है, पहले लॉ फिक्स करता है, बहुत हाई फिक्स होता है, बता रहे हैं ना, दैट इज सब्जेक्ट टू चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम, बहुत हाई फिक्स होता है। तो लॉ फिक्स करता है, मान लीजिए 90% शेयर, तो उसके ऊपर आप फिक्स कर सकते हो 95, 98, 100% मोस्टली सब्सक्राइब, आप ये कर सकते हो, उसके ऊपर फिक्स कर सकते हो, ठीक है। मिनिमम सब्सक्रिप्शन दैट मींस कि उतना पैसा सब्सक्राइब होना चाहिए, नहीं तो एंटायर सब्सक्रिप्शन कैंसिल होगा। नो अलॉटमेंट शैल बी मेड अनलेस द स्टेटेड इन द प्रोस्पेक्टस मिनिमम सब्सक्रिप्शन, मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं होने से अलॉटमेंट की प्रक्रिया नहीं शुरू होगा, तो हमको मिनिमम सब्सक्रिप्शन के पैसा इकट्ठा करना है। then has been subscribed the sum payable on the application for the amount so stated has been paid in cash and received by the company. The minimum amount of the share capital is determined to, minimum subscription कैसे क्या होता है, minimum amount of capital is determined to cover up the purchase price of any property purchase or preliminary expenses, money borrowed for the foregoing matter and turnover workings. Why minimum amount fixed? For establishing a company, you have to incur crores of rupees as preliminary expenses, you already have stated. To cover up such a capital expenditure, such a portion of capital expenses, you have to fix such type of bar. तो वो कौन से expenses होते हैं? Purchase price of any property purchased and preliminary expenses जो हुए थे इस टाइम, money borrowed for foregoing matter, मतलब ये जो काम के लिए जब भी आपकी पैसा लोन तब तक होगा जो बाकी की वर्किंग एटसेट्रा, बुक बाइंडिंग, बुक बिल्डिंग, बहुत सारा चीजें जो कि आगे पढ़ेंगे। ये चारों पॉइंट एक्सपेंडिचर था, कैपिटल एक्सपेंडिचर एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ शेयर्स, इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी। मिनिमम कैपिटल इज नॉट अप्लाइड, शेयर कैन नॉट बी अलॉटेड, पहले से बताए।
सेबी का गाइडलाइन क्या कहता है? द मिनिमम एप्लीकेशन मनी, ये एप्लीकेशन मनी अलग चीज होता है। सेबी गाइडलाइन कहता है, सुनिए, मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज समथिंग एल्स, एप्लीकेशन मनी इज समथिंग एल्स। सेबी गाइडलाइन के हिसाब से एप्लीकेशन मनी नॉट लेस देन 25% फॉर द इशू प्राइस। सुनिए, आपकी इशू हो रहा है, इशू प्राइस 100 ही मान लेते हैं अभी तक हमारा, 100 रुपीज एक शेयर रखे हो, तो एप्लीकेशन के टाइम में 25 रुपया आपको मिल जाने चाहिए, उससे कम आप नहीं रखोगे। स्टैट्यूटरी मिनिमम एप्लीकेशन मनी एज पर 69(3) ऑफ द कंपनीज एक्ट इज 5% नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर्स। अंडरस्टैंड? स्टैट्यूटरी मिनिमम एप्लीकेशन मनी आज पर ये है 5% of the nominal value of the shares and 25% price cannot be less than the 5% of the। अरे ये कुछ नहीं, वो कह रहा है कि स्टैट्यूटरीली लीगली कहा जा रहा है कि 5% ऑफ द शेयर्स मोस्ट भी होना चाहिए। सेबी गाइडलाइन कह रहा है कि 25% मोस्ट भी मिनिमम होना चाहिए। बात यह है, कंपनी में फिक्स से हायर प्राइस, प्रैक्टिकली उससे हायर प्राइस रखा जाता है, 35% से शुरू होता है, तो कंपनी शुड फिक्स हायर प्राइस। वो कह रहा है कि विच मस्ट नॉट बी लेस देन 25, तो 25% से लेस नहीं होगा, तो ऑब्वियसली 5% से लेस नहीं होगा, वही बात है। अंडरस्टैंड? समवेयर द कंपनी लॉ, यहाँ पे हम बता देते हैं, समवेयर द कंपनी लॉ सेबी बोथ आर कॉन्ट्राडिक्टरी। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स? बोथ आर कॉन्ट्राडिक्टरी। यहाँ पे हम बता देते हैं, पूरा एंटायर कंपनी को चलाने के लिए, पूरा एंटायर कंपनी को चलाने के लिए जो लॉ काम करता है उसका नाम होता है कंपनी लॉ। सेबी कहां पे इंटरफियर करता है? जहां पे सिक्योरिटी जाता है, दैट मीन जहां पे शेयर आता है। शेयर की एस्पेक्ट को छोड़ करके बाकी कुछ में सेबी का दखलंदाज नहीं है। तो व्हेनेवर यू आर कंसर्न्ड अबाउट द सिक्योरिटीज, वहां पे सेबी बीच में आ जाएगा। तो सेबी के कुछ गाइडलाइन होते हैं, कंपनी लॉ के कुछ गाइडलाइन होते हैं, तो इन दोनों को मिलकर के जो हाईएस्ट होगा या फिर जो रैशनल होगा उसी को फिर से हम प्रैक्टिस करते हैं। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स? इन ऑर्डर टू अवॉइड एनी फाइन पेनल्टी। आगे का चलो, एप्लीकेशन क्या होगा? इच एप्लीकेशन शेयर मस्ट बी कंप्लाइड बाय द प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन मनी। ठीक है, एप्लीकेशन जो भी आप करोगे विद एप्लीकेशन मनी होगा। द एप्लीकेशन मनी मतलब 5% ऑफ द, ये कंपनी लॉ के हिसाब से 5% से कम नहीं होना चाहिए। हालांकि 5% में आज तक कोई भी एप्लीकेशन वगैरह नहीं हुआ है, 35% तक चलता है। समझ में आई बात? मिनिमम होता है। आगे का जो भी सवाल पूछेंगे हर एक चीज हम इसलिए बता देते हैं ताकि आपको डुअलिटीज होता है, कहीं पे आप देखते कुछ हो, ढूंढते कुछ हो, फिर बोलते कुछ हो। 5% कंपनी लोग कह रहा है, लेकिन कोई भी कंपनी 5% में काम नहीं करता है। सेबी गाइडलाइंस कह रहा है मिनिमम 25 रुपया करके एप्लीकेशन के टाइम में लो, लेकिन हम बता रहे 35 रुपया से कम नहीं लिया जाता है। लेकिन प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में हमको जब सीख रहे हैं तब एप्लीकेशन मनी क्या होगा? 5 रुपया हो सकता है, 10 रुपया हो सकता है, 20 रुपया हो सकता है। आप यहाँ पे रिजिड नहीं होने हैं, क्योंकि हम अकाउंटिंग सीख रहे हैं उस टाइम। समझ रहे हो? उस टाइम हम चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बन रहे हैं जो कि लॉ को कंप्लाई करें। आगे, ऑल एप्लीकेशन मनी मस्ट बी केप्ट इंटैक्ट विद शेड्यूल्ड बैंक। हाँ, एप्लीकेशन मनी कोई एक शेड्यूल्ड बैंक के अंदर आप रखोगे, सेपरेट अकाउंट खोल करके। शुड नॉट यूज्ड अनलेस सर्टिफिकेट ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस रजिस्टर। जब तक सर्टिफिकेट ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस नहीं आता है आप उसमें से यूज नहीं कर सकते। अलॉटमेंट टेक्स प्लेस अगर हो गया तो लेटर ऑफ अलॉटमेंट भेजने हैं, इसको याद रखो। अलॉटमेंट होने से लेटर ऑफ अलॉटमेंट भेजे जाएंगे शेयर होल्डर्स को, क्यों? जब तक इंटीमेशन नहीं भेजते हो तब तक अलॉटमेंट कंप्लीट नहीं होता है। अलॉटमेंट अगर नहीं मिलता है तो उसके लिए और एक चिट्ठी भेजे जाते हैं, पछतावा चिट्ठी। हमें खेद है कि हम आपको कुछ नहीं दे सके। समझ रहे हो? यही बात है। तो अगर मिल जाता है शेयर तो उस चिट्ठी का नाम होता है लेटर ऑफ अलॉटमेंट। मिलता नहीं है शेयर तो पछतावा लेटर, लेटर ऑफ रिग्रेट भेजा, उसको रिफंड हो जाते हैं। कुछ भी चीजें ऑफलाइन नहीं होता है, सारे के सारे ऑनलाइन होते हैं। सारे के सारे चीजें ऑनलाइन होता है। लेटर ऑफ अलॉटमेंट ईमेल के जरिए आते हैं, लेटर ऑफ रिग्रेट ईमेल के जरिए होते हैं। आप एनईएफटी के जरिए पेमेंट करोगे, आपको डीमैट खाते के जरिए ऑनलाइन शेयर्स मिलेंगे। नो वेयर यू विल फाइंड ए फिजिकल डॉक्यूमेंट एट ऑल। अंडरस्टैंड द पॉइंट? दिस इज द प्रैक्टिकल थिंग। लेकिन लॉ तो उसमें रहेगा ना, लॉ रहेगा। कहीं ना कहीं आपकी विजुअली बैकअप में यही चल रहा होगा दिमाग में, अरे पहले खाता आता है, लिखा जाता है, लाइन काट के पूरा खींच के रोलिंग करके एक एक शेयरहोल्डर्स का नाम लिखा जाता है, उनका शेयरहोल्डर्स का रजिस्टर होता है। एवरीथिंग इज मेंटेन्ड इलेक्ट्रॉनिकली बिकॉज इन दिस वर्ल्ड हैविंग लाख्स ऑफ ट्रांजैक्शन, करोड्स ऑफ ट्रांजैक्शन, कंपनी इतना उनके पास टाइम नहीं है रे बाबू। प्रोविजंस आगे तक बढ़ाते हुए, डायरेक्टर जब अलॉटमेंट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, द डायरेक्टर ओनली हैव द राइट टू अलॉट लेस नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड। अच्छा, ये कोई बात नहीं, सुनिए। डायरेक्टर्स हैव राइट्स टू एक्सेप्ट द एप्लीकेशन
रिजेक्ट द एप्लीकेशन, ऑल्टर द एप्लीकेशन। सिंपल, तीन चीजें लिखो, तीन चीजें लिखो। पावर टू एक्सेप्ट, रिजेक्ट, ऑल्टर। दैट मीन्स उससे कम भी दे सकते हैं, क्योंकि आप ज्यादा अप्लाई कर रहे हो, शेयर उतना है नहीं, तो आपको कम शेयर दिए जाएंगे ना, तो डायरेक्टर के पास ये राइट्स है। द बैलेंस ड्यू ऑन शेयर्स में भी फर्दर कॉल्ड द कंपनीज इंस्टॉलमेंट इज। तो ठीक है, आपको पहले, सबसे पहले एप्लीकेशन मनी देने पड़ जाएंगे। नंबर 2, अलॉटमेंट मनी उसमें देने पड़ जाएंगे एप्लीकेशन के टाइम में, ये सर्टिफिकेट देने के टाइम अलॉटमेंट में। जो भी बैलेंस बचा उसको कॉल्स मनी कहा जाता है, क्योंकि ये ऑन डिमांड ऑफ कॉल ही आपको देने हैं, ऑटोमेटिकली आपको नहीं देने हैं। जब तक कंपनी डिमांड नहीं करता है तब तक यू आर नॉट लायबल टू पे एनीथिंग टू द कंपनी। Hence, on call it is paid. Hence, it is known as the calls money. The balance due on the share must be further calls money. ये installment में पेमेंट होते हैं. Each installment is called a call, and the amount payable is the call money. Between two calls, there must be a gap of at least 1 month. ठीक है, बात वही है। 100 रुपया होता है शेयर का प्राइस। एप्लीकेशन के टाइम में 20 ले जाओ, अलॉटमेंट के टाइम में 20 ले जाओ, फिर यहाँ पर 30 लगाओ, फिर यहाँ पर 30 लगाओ। ठीक है ना, ये एप्लीकेशन मनी हो गया, ये अलॉटमेंट मनी हो गया, ये फर्स्ट कॉल हो गया, ये सेकंड कॉल हो गया। समझ में आई बात? वो ये कह रहा कि फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल में एक अंतर होना चाहिए, एक समय की, वो होना चाहिए 1 month। So there must be 1 month time lag, a time gap between the two calls. Share capital suspense account. Application money received on shares is transferred to the share capital amount on allotment share. Share suspense account is a temporary account created to transfer any receipt on the share issue or reissue in case of forfeiture, in case of a pending decision regarding that receipt. बाद में पढ़ेंगे चीज, शेयर सस्पेंस अकाउंट क्या चीज होता है हम बता दे रहे हैं। मान लीजिए किसी का एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया है, या फिर किसी का शेयर को हम जब्त कर दिए, बाद में पढ़ेंगे, उसको फॉरफीचर कहा जाता है। ठीक है, तो उसके जो ऑलरेडी पैसा रिसीव हुए हैं, मान लो ये 20 रुपया दिया था, ये भी 20 रुपया दिया था, आगे का वो नहीं दिया, उसका शेयर कैंसिल होने हैं। लेकिन ऑलरेडी जो 40 रुपया मिला है उसका तो कैपिटल कैंसिल हो जाएगा, तो शेयर कैपिटल कैंसिल हो गया। ऑलरेडी रिसीव्ड जो मनी है उसको हम कहां रखेंगे? शेयर कैपिटल सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, शेयर कैपिटल सस्पेंस अकाउंट में रखेंगे। तो इसको कैसे डील करेंगे, क्या करेंगे? जब तक डिसीजन नहीं होता है, जब तक डिसीजन नहीं होता है तब तक ये शेयर सस्पेंस अकाउंट में रहेगा। जब डिसीजन हो जाता है, पैसा कहां ट्रांसफर होना है, तो सस्पेंस अकाउंट को कैंसिल कर दिया जाता है। ठीक है, तो अभी देखो, इशू ऑफ शेयर्स आर डिफरेंट वैल्यूज। लुक एट, शेयर्स में भी इशूड एट ए प्राइस। ऑब्वियसली शेयर्स इशू हो सकते हैं, 100 रुपए का एक शेयर 100 में इशू हो सकते हैं, 100 रुपए का एक शेयर 110 में इशू हो सकते हैं, 100 रुपए का एक शेयर 90 में भी इशू हो सकते हैं। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स? यहीं पे हम आपको एग्जांपल देने वाले हैं, जो चीजें सिनेमा हॉल के, आप सब पहले गए थे सिनेमा हॉल, ठीक है, कहानी हम बात बात में शुरू कर देते हैं, कोई बात नहीं, कोई कंजूसी नहीं रहता मेरे पास एग्जांपल का या फिर कहानियों का, हालांकि आप ढंग से सुनते नहीं हो। सिनेमा हॉल में उसमें मान लो सिल्वर कैटेगरी है, गोल्ड कैटेगरी है, डायमंड कैटेगरी है, डायमंड कैटेगरी है। समझ में आई बात? प्री फिक्स्ड जो प्राइस है, पूरा प्री फिक्स्ड जो प्राइस है, सिल्वर का 100 रुपीज, ये 150, ये 200। ठीक है, क्लास ऑफ सीट है। तो जब सिनेमा का डिमांड नहीं है, बहुत डिमांड नहीं है, ऐसा हुआ नहीं है लेकिन पहले होता था हमारे जमाने में, डिमांड नहीं है तो सिल्वर कैटेगरी कोई नहीं खरीद रहा, तो सिनेमा का जो आप खरीदे हो प्रोडक्शन से, है कि नहीं, धर्मा प्रोडक्शन से जो सिनेमा आप रॉयल्टी में लिए हो, यूएफओ डिजिटल की तरह जो टेलीकास्ट हो रहे हैं, उसके लिए रॉयल्टी देना पड़ता है। पता भी है कितना देना पड़ता है? एक दिन का कम से कम 50,000 देना पड़ता है। रॉयल्टी कहां से उठेगा बाबू? दैट्स व्हाई यू आर बाउंड टू कंसिडर। तो मान लीजिए अभी इसका जो फिक्स्ड प्राइस है 100 रुपया, सिनेमा नहीं चल रहा है, तो 90 रुपया में टिकट बेचना स्टार्ट करो। ये 150 जो था 120 रुपया में बेचना स्टार्ट करो, 200 जो था वो 150 रुपया में बेचना स्टार्ट करो। दैट मीन्स कि डिस्काउंट। समझ में आई बात? डिस्काउंट। ध्यान से सुनो, हम कुछ और चीज बताने वाले हैं।
डिस्काउंट में मिल तो गया आपको, यहाँ पे कंपनी का नुकसान हुआ, लेकिन डिस्काउंट में सिल्वर टिकट मिलने से भी आप बैठोगे कहाँ, सिल्वर टिकट में बैठोगे ना। दैट मीन्स यहाँ तो गोल्ड में बैठोगे, यहाँ तो डायमंड में बैठोगे, डिस्काउंट में पैसा लिया उसका मतलब तो नीचे बैठ जाओगे नहीं ना, उसे कारपेट पड़ा होता है देखे हो कि नहीं, उस कारपेट में तो नहीं बैठ जाओगे ना जाकर के, या फिर बाथरूम में बैठ जाओगे जाकर के, नॉट लाइक दैट ना। सो यू हैव टू एक्वायर दैट सीट्स, दीज आर द थिंग्स, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। जो अगर हैविंग एनी क्वेरी तो माइक ऑन कीजिए, बताइए, नहीं तो क्या होगा कि आपका जो स्क्रीन है वो रिकॉर्ड हो जाएगा, समझ में आई बात। एनीवन टर्निंग ऑन द माइक दैट मींस कि ही और सी विल बी रिकॉर्डेड, उनका स्क्रीन रिकॉर्ड हो जाएगा, अदरवाइज टर्न ऑफ द माइक, ओके कोई बात नहीं। तो आप वो पोजीशन होल्ड करोगे लाइक दिस, समझ में आई बात। नेक्स्ट वीक आगे देखो आप बताएंगे। सपोज अभी बहुत ही डिमांड है, एक सिनेरियो आया था जब रिलीज हुआ, हम सिनेमा आपको दिखा रहे हैं देखिए, सिनेमा का नाम था बाहुबली, अरे 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 क्रेज था वर्ल्ड वाइड। जब रिलीज हुआ टिकट नहीं मिला, अगले 5 महीने तक टिकट नहीं मिला, ठीक है। तो उससे 1 महीना तक पहले एडवांस बुकिंग हो चुका था। दूसरा सिनेमा, अब आई हैव टू नथिंग टू डू विद द सिनेमा, जो स्टैटिस्टिक जो डेटा है हम बताते रहे। फिर से 2 महीना तक टिकट नहीं मिला, उसके बाद कोई एक सिनेमा था, तो वो हमें नहीं पता वो क्या था क्यों था, वो था सिनेमा कबीर सिंह, ठीक है। एक महीना तक टिकट नहीं मिला, ठीक है, एडवांस बुकिंग हो रखा था, तो हमें नहीं पता। नेक्स्ट ट्वीट सुनो, तो उस टाइम क्या था, 100 रुपीज, ये 120 में जाएंगे, 150 200 में जाएंगे, 200 250 में जाएगा। और ये काउंटर में नहीं होता है, ब्लैक टिकट होते हैं, आपको पता है ब्लैक में जाएगा। हमें क्या बता रहे हैं, ये प्रीमियम में बेचे जाओगे, फिर भी तो जा करके आप मालिक के सर पे नहीं बैठोगे ना, वही सिल्वर में बैठोगे, डायमंड में बैठोगे, वही गोल्ड में बैठोगे। कहने का मतलब है ये जो है, ये जो नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर, ये है इशूड प्राइस ऑफ द शेयर, ये है इशूड प्राइस ऑफ द शेयर। बट इशू प्राइस जो होते हैं उसके सिर्फ पैसा मिलते हैं जो बैंक अकाउंट को जाते हैं, लेकिन कैपिटल मनी कितना होता है, नॉमिनल वैल्यू जितना उतना ही कैपिटल मनी होता है। दैट मीन्स वट एवर मे बी द इशू प्राइस, कैपिटल को उतने ही जाएंगे जितना नॉमिनल वैल्यू है। ये मेरा कहने का इस एग्जांपल में मुद्दा था, समझ में आई बात। whether you may get shares at discounted price, whether you may get shares at a higher price, but the capital amount will be fixed at the nominal value of the shares. Understand the point? यही बात है सर। ये एग्जांपल हम लिख दे, एग्जाम में लिख दो, क्या होता है, एट पार एट प्रीमियम एट डिस्काउंट में इशू हो सकते हैं, ठीक है, वही बात है। देखो एट पार का मतलब होता है जब इक्वल प्राइस में आप शेयर्स को दे रहे हो, 10 रुपया का शेयर है, 10 रुपया में दे रहे हो। प्रीमियम का मतलब ज्यादा पैसा में, कंपनी जब मोर देन द नॉमिनल वैल्यू चार्ज करता है, इसको प्रीमियम केस कहा जाता है। 10 रुपया के शेयर में 15 रुपया में दे रहे हो, तो यहाँ पे प्रीमियम अमाउंट कितना हुआ, 5 रुपया। इसके लिए खाते क्या खोला जाएंगे, शेयर प्रीमियम अकाउंट, इस खाते में जमे होंगे। डिस्काउंट कब होगा ना, कंपनी जब लेस देन नॉमिनल वैल्यू चार्ज करेगा। 10 रुपया का शेयर है, 8 रुपया आप ले रहे हो, यहाँ पे डिस्काउंट कितने हो रहे हैं बाबू, 2 रुपया हो रहे हैं। खाते क्या खोले जाएंगे, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स अकाउंट, इस खाते में इस पैसा को हम जमा कर देंगे, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स के खाते में, ठीक है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इशू ऑफ शेयर्स, समझ में आई बात। अभी क्या होगा, उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है आप लोग देख लो। याद है सर, याद है पूरा एकदम, +2 से याद है हमको। आप आगे बोलो, आप आगे बोलो, ठीक है पता है, लेकिन थोड़ा सा सुनो यहाँ पर। फर्स्ट चैप्टर में आपको जर्नल एंट्रिया मान लीजिए, क्योंकि तो स्पेशल जर्नल एंट्री है, आप इसको अल्टर नहीं कर सकते, आप इसको काउंटर नहीं कर सकते हो। आप नहीं कह सकते कि हम अपने सूझबूझ से एक नया अकाउंटिंग एंट्री बनाए हैं। अरे बनाए हो तो कंपनी लॉ में अप्रूव नहीं है ना, तो ये तो अब चीज आपको लर्न करना पड़ जाएंगे। फर्स्ट चैप्टर में मान लीजिए आपको 20 मतलब जर्नल एंट्री मिलेंगे। सेकंड चैप्टर में, हर एक चैप्टर में, सेकंड चैप्टर में तो 40 जर्नल एंट्री है कम से कम। ऐसे कुल आपको क्या होगा, मिनिमम तो 100 जर्नल एंट्री होंगे पूरा इस सब्जेक्ट में, जो को आपको की एज इट इज यूज करना है। आप अल्टर नहीं कर सकते हो ना, बिकॉज जो चीजें लॉ में है आप अल्टर नहीं कर सकते हो ना। 100 जर्नल एंट्रियां मिल जाएंगे। हम क्या कहना चाहते हैं, सुनिए भाई, कोई ये कहीं भाग रहा है, अरे बाबू घर पे बैठो, चेयर टेबल पे बैठो या फिर बिस्तर के ऊपर बैठो,
और देखो कल तो एक जन पीजी क्लास ले रहे थे, वो क्यों कार में जा रहा है, कहीं पे घूम करके सवारी कर रहा है, कार में जा रहा है, मोबाइल को करके डैशबोर्ड में रख दिया है, अरे वो यूट्यूब चल रहा है, सिनेमा चल रहा है। ठीक है चलो, हाँ ये भी उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट। अब तो कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि उसको टाइम नहीं है बेचारा, फिर भी खोला है, ये भी तो हो सकता है ना। ठीक है, वो भी बात। योर इंटरेस्ट दैट मैटर्स। Am I audible and visible? Yes, Yes, sir. sir. Yes, Yes, sir. sir. Okay. Yes, sir. Yes, 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 sir. yes, जी भाई Yes, sir. हो गया। Yes, sir. हाँ ये जो Yes, कतार sir. आपके बना के रखे हो, ये Yes, सर sir. हो गया, हो गया। Stop it. Someone said yes sir, yes sir, yes sir. Your answer is going to be the same, means you keep muted. Understand the point? मजा होता है ना। चलिए यस सर, गुड मॉर्निंग, जितना जन है उतना जन लिखेंगे गुड मॉर्निंग एक बार। ठीक है, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा ठीक, कोई बात नहीं। नेक्स्ट वीडियो देखो, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ द इशू ऑफ शेयर्स। हाँ हम क्या कह रहे थे, 100 एंट्री आपको याद रखने हैं। अब यही तो सिर्फ नहीं है, और भी कुछ है उसमें, कुछ फिर एंट्री आपको याद रखना होगा, और भी सब्जेक्ट। उस एंट्री की लॉजिक समझ जाओ बाबू, उस एंट्री की भाषा समझ जाओ, वो लाइफ टाइम याद रहेगा। याद सबको रखना है, समझ जाओगे तो जल्दी याद रहेगा, हम वही कह रहे हैं। ऑन रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी, समझ में आई बात। जब एप्लीकेशन का पैसा मिल रहा है, हमारे हिसाब से क्या था, 20 20 30 30। ठीक है, लॉ के हिसाब से ऐसा होता नहीं है, अब बार बार उसी जगह में नहीं आओगे। ऑन रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, पहला आपको जो ये 20 रुपया करके मिल जाएगा, मान लीजिए हमारे 1000 शेयर के ऊपर, तो पहले तो एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, तो एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड तो पैसा मिलेगा तो बैंक अकाउंट डेबिटेड ना। जिस वजह से मिल रहा है उसका नाम है शेयर एप्लीकेशन, इसलिए उसका नाम दे दोगे आप शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बहुत इजी है। जब तक एप्लीकेशन पैसा नहीं मिलता है तब तक उस एप्लीकेशन को कंसीडर नहीं किया जाता है, इसलिए जब शुरू होता है एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड से शुरू होता है, तो ऑन रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी। लेकिन उसके बाद ड्यू होते हैं, अलग बात है, पहले आपको मिले। तो बैंक यहाँ पर क्या देखो, यहाँ 1000 इंटू 20, सो 20,000 20,000। उसके बाद क्या हुआ, जो शेयर एप्लीकेशन अब पैसा आपको मिला, ध्यान से आप सुनेंगे, हमारा यहाँ एक रहेगा डिब्बा, ऐसा होता है, बिल्कुल होता है। इस डिब्बे का हम कुछ नाम देंगे, पता है इसका नाम क्या है, इसका नाम है शेयर कैपिटल। और ये डिब्बा फिलअप होगा इंस्टॉलमेंट में, पता है कैसे फिलअप होगा, कभी एप्लीकेशन के बहाने, कभी अलॉटमेंट के बहाने, कभी कॉल्स के बहाने। और ये शेयर कैपिटल में सिर्फ और सिर्फ उतने ही पैसा आएंगे जो कि कैपिटल की पोर्शन है। अंडरस्टैंड द पॉइंट। तो पहले तो एप्लीकेशन मनी 20,000 आ गए ना, एप्लीकेशन मनी क्यों आए थे, किस पर्पज के लिए, ये कैपिटल नामक डिब्बे में डालने के लिए। उसीलिए सेकंड में क्या होगा, ऑन ट्रांसफरिंग ऑफ द एप्लीकेशन मनी टू द कैपिटल अकाउंट, उस कैपिटल नामक डिब्बे में डाल दो। समझ में आई बात। इसलिए एप्लीकेशन मनी जब कैपिटल में डाल देते हो, देखो आपको उल्टा करना पड़ रहा है। पहले तो आपको एप्लीकेशन मनी, ये चीज देखो, लॉजिक मतलब बहुत भयानक लॉजिक बताएंगे। ये एप्लीकेशन का डिब्बा था, एप्लीकेशन के डिब्बे से आपको ट्रांसफर करना है शेयर कैपिटल के डिब्बे में। तो कैसा करना पड़ेगा, इस एप्लीकेशन को खाली करोगे, इसको खाली करोगे तब ना यहाँ पे भरेगा। इंप्लाइज दैट एप्लीकेशन का जो खाता है वो क्रेडिट हुआ करता था, उसको अभी कैंसिल करने के लिए उसको डेबिट कर दिए जाएंगे। तो जो क्रेडिट हुआ था उसको डेबिट करने से कैंसिल होता है, जो डेबिट हुआ करता था उसको क्रेडिट करने में कैंसिल होते हैं। और उसी के जगह पे हम कौन सी जगह में उसको पैसा भेज दिए, शेयर कैपिटल की जगह में। तो इसलिए अभी शेयर एप्लीकेशन डेबिट हो जाएगा 20,000 और कैपिटल में भर देंगे 20,000। दिस इज द ओनली लॉजिक फॉर कैपिटल, सब शेयर कैपिटल, सॉरी शेयर एप्लीकेशन मनी पहले क्रेडिट होता है उसके बाद डेबिट होता है। अदरवाइज यू विल बी सर्चिंग फॉर द लाइफ टाइम, यू विल नॉट फाइंड। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। क्योंकि कोई एक खाता में जो पैसा अगर उसको एग्जॉस्ट करना है, उसको नील करना है, तो उस खाते को उल्टा करना पड़ेगा। उल्टा नहीं करोगे, यहाँ पे देखो इस डिब्बा का अगर उल्टा नहीं करोगे यहाँ पे इस तरह, अरे बाबू तुम साइलेंट रहो ना, ठीक है। तो जब तक इसको आप उल्टा नहीं करते तब तक इस डिब्बे में भरेगा नहीं। दैट्स व्हाई ये पहले तक क्रेडिट, इसलिए उसको उल्टा करना पड़ा डेबिट। समझ में आई बात। बच्चों की तरह यहाँ पे समझाने की पीछे कुछ वजह है,
इसके पीछे कुछ राज है। Many times we people engage ourselves, we train our mind to learn the things, not to acquire the things. एक छोटा सा एंट्री है, उससे बात करके उससे सल्टा दो, अपने अंदर के सेटलमेंट कर दो उसके साथ कि बाबू तुम कैसे याद रहोगे। फाइंड द वेरियस टाइप्स ऑफ बहाना टू रिमेंबर द एंट्रीज, टू रिमेंबर द कंसेप्ट। हम तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट को पता है आपको, फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो वास्ट कोर्स इन द प्रोफेशनल, उसको हम याद रखने के लिए ना कहानी बनाए थे, स्टोरी बना के देते थे। कुछ स्टूडेंट तो उनको रैप बना दिए थे। यू मस्ट योर कस्टमाइज्ड नोट्स, कस्टमाइज्ड आइडियोलॉजी, स्टोरीज, पिक्चर्स, रीजन्स टू रिमेंबर दीज थिंग्स। इसलिए हमेशा नोट खुद की बनाओ, समझ खुद की रखो। जब तक दूसरों की नोट से देख करके आप लिखते रहोगे तब तक दूसरों से कम मार्क रखोगे। जब लोग आपकी नोट यूज करेंगे तो आप आगे रहोगे। समझ में आई बात? यही बात याद रखने के लिए कहानी बनाओ। आगे देखो, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इशू ऑफ शेयर्स। अभी तो जो एप्लीकेशन पहले मिलता है उसके बाद कैपिटल में जाता है, लेकिन यहां पर क्या हुआ, ऑलरेडी जब एप्लीकेशन आया तो ये जो शेयर होल्डर था इसको हम ऑलरेडी रजिस्टर कर दिए हैं। तो अभी ध्यान से सुनो, पहले तो जब एडमिशन होता है, ये चीज हम आपको बताए थे। तो जब एडमिशन होता है पहले पैसा फी, एप्लीकेशन फी भरते हो, उसके बाद अभी आपकी एडमिशन होगा। ठीक है, अभी एडमिशन होगा, ध्यान से सुनो। तो जैसे ही एडमिशन होगा तो कॉलेज से आपको मैसेज जाएगा एडमिशन करने के लिए। दैट मीन्स कि यहां पहले ड्यू होंगे उसके बाद रिसिप्ट होंगे। ध्यान से देखो, एप्लीकेशन मनी पहले मिलता है उसके बाद कैपिटल में ट्रांसफर होता है। लेकिन अलॉटमेंट क्या होगा, ऑलरेडी नाउ आपकी एप्लीकेशन मिल चुका है, अभी आपकी एडमिशन के लिए बुलावा दिया जाएगा। तो पहले बुलावा फिर पैसा रिसीव, इसलिए एप्लीकेशन मनी ड्यू। तो जब ड्यू होता है उसी टाइम ही हम शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर देते हैं, क्यों? क्योंकि अभी आपको एडमिशन दिया जा रहा है तो उम्मीद है कि आप जो पैसा दोगे वो कैपिटल ही रिगार्डेड होगा। इसीलिए शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। लॉजिक बताएंगे, क्योंकि कैपिटल में क्रेडिट कर रहे हैं तो कैपिटल हमेशा होता है क्रेडिट नेचर। अब देखो, कैपिटल इंक्रीजेस, क्रेडिट होता है। और शेयर अलॉटमेंट अकाउंट एक्चुअली बताएंगे ना, इसका कोई लॉजिक नहीं है क्यों डेबिट हो, एक्चुअली में कोई लॉजिक नहीं है। सेकंड में हम बता रहे हैं क्योंकि इनको डिमांड किया जा रहा है तो ये डेटर्स है, क्योंकि डेटर्स है इसलिए डेबिट है। डेटर्स ऑलवेज डेबिट, क्रेडिटर्स ऑलवेज क्रेडिट। कैपिटल ऑलवेज क्रेडिट, ड्रॉइंग्स ऑलवेज डेबिट। अंडरस्टैंड द पॉइंट? तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्योंकि उनको पैसा मांगा जा रहा है तो ये डेटर्स है इसलिए वो डेबिट है। पहले पैसा मांग दिए, उसके बाद ये जो पैसा दे देंगे तो ये उनका कॉल जब कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगा तो ये अलॉटमेंट अकाउंट, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट पहले डेबिट था, फिर शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट हो गया। तो सीधी बात हम बताएंगे, ऑल द शेयर कॉल अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ये दीज आर द टेम्पररी अकाउंट, दीज आर द टेम्पररी अकाउंट। जब उनके पर्पस हो जाते हैं कंप्लीट, ये हो जाते हैं कैंसिल। शेयर एप्लीकेशन मनी, शेयर अलॉटमेंट मनी, शेयर कॉल्स अकाउंट होते हैं टेम्पररी अकाउंट, पहले खोला जाते हैं तुरंत, फिर उसको बंद किया जाते हैं जब ये उनका पर्पस कंप्लीशन हो जाते हैं। नेक्स्ट तो देखो, पहले हुआ शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डेटर डेबिट, कैपिटल क्रेडिट। नेक्स्ट उसके बाद जब पैसा मांगे हैं, पैसा मिल जाएगा, जब मिल जाएगा तो कैश रिसीव डेबिट, आपको पता ही है कैश और बैंक अकाउंट एसेट होता है, एसेट आने पर डेबिट होता है। ठीक, और ये क्योंकि कैंसिल हो रहा है तो पहले डेबिट था अभी क्रेडिट हो जाएगा। सिंपल लॉजिक। तो अभी तक क्या होगा, बच्चा का एडमिशन हो गया कॉलेज में, समझ में आई बात? एडमिशन हो गया। जैसे ही आप पहले एप्लीकेशन दिए थे, फिर बच्चा का एडमिशन हो गया, फिर एडमिशन होने के बाद तो आपका जो एंटायर स्कूल फी होगा
उसके लिए तो आपको इंस्टॉलमेंट पे करने होंगे ना, कर रहे थे कि नहीं हर महीना इंस्टॉलमेंट पे 2500 रुपया करके। तो देखो, तो अभी कॉल आपको फीस भरने होंगे आपके स्कूल में, तो मेकिंग से ही मांग रहे हो। हर एक ड्यू में अभी क्या होगा, क्योंकि ऑलरेडी एडमिटेड आप हो, तो आपकी जब भी ड्यू होगा हम अज्यूम करेंगे कि आपकी पैसा अभी कैपिटल अकाउंट में जा रहा है, कैपिटल अकाउंट में जा रहा है। क्यों? एप्लीकेशन सर्टेनिटी नहीं था, रिजेक्ट भी हो सकता था, इसलिए पहले पैसा रिसीव हुआ फिर ट्रांसफर हुआ। लेकिन अभी तो आप एडमिशन कर चुके हो, तो आपका पैसा हम कैपिटल में डाल देंगे, ठीक है। इसलिए शेयर कैपिटल, ये देखो क्रेडिट हो गया, डेटर से पैसा मांग रहे हो इसलिए डेबिट हुआ, ठीक है। अगर कोई लॉजिक कभी पूछता है तो उसको बता देना, क्योंकि डिमांड हो रहा है तो डेटर से ये डेबिट हो रहे हैं, और कैपिटल ऑलवेज ये इंक्रीज हो रहे हैं तो क्रेडिट हो रहे हैं। जैसे कि हम बताए शेयर फास्ट कॉल के लिए पैसा मांग रहे हैं, जब मिल जाएगा बाबू, जब मिल जाएगा तो उसको कैंसिल करना होगा ना, क्योंकि ऑल दीज आर द टेम्पररी अकाउंट्स। तो पहले ये डेबिट हुआ करते थे, अब बेचारा ये क्रेडिट हो जाएगा। और पैसा मिल रहा है तो सेकंड एंट्री क्या होने हैं, पैसा मिल रहा है इसलिए बैंक अकाउंट एसेट कम्स इन हमेशा डेबिट। अंडरस्टैंड द पॉइंट? तो सबसे पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, ट्रांसफर टू कैपिटल, उसके बाद ड्यू रिसिप्ट, ड्यू रिसिप्ट, ड्यू रिसिप्ट। जब ड्यू हो रहा है शेयर अलॉटमेंट डेबिट, उसी टाइम शेयर कैपिटल आ जाएंगे। पैसा जो मिल रहा है सबसे इजी, पैसा अकाउंट डेबिटेड टू, जो जिसके लिए मिल रहा है, ये देखो पैसा अकाउंट डेबिटेड टू, फर्स्ट कॉल के लिए मिले तो फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल के लिए मिले तो सेकंड कॉल। उस हिसाब से अभी देखो सेकंड कॉल अगर ड्यू होता है तो शेयर सेकंड कॉल टू शेयर कैपिटल, उसके बाद शेयर सेकंड कॉल अकाउंट कैंसिल हो जाएगा, पैसा मिलेगा। फाइनल कॉल अगर कुछ है तो शेयर फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल, शेयर फाइनल कॉल कैंसिल हो जाएगा, पैसा मिलेगा। सीक्वेंस फ्लो, अब चाहोगे तो गलत नहीं लिख सकते हो, कैसे हम बता रहे हैं। पहले अगर ये फाइनल कॉल डेबिट हुआ है, दूसरे एंट्री में तो वो क्रेडिट हुआ होगा ना, गारंटी क्रेडिट होगा, तो ये एंट्री तो गलत नहीं हो सकता। नंबर 2, व्हेन कैश कम्स इन, कैश अकाउंट तो डेबिट होना ही है, दैट मींस कि ये भी गलत नहीं होगा। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स? कैपिटल ऑलवेज क्रेडिट होता है, तो ये तो गलत नहीं होगा, क्रेडिट। वो कौन सा पॉइंट है जहां पे आप गलत करते हो, हमको नहीं समझ में आता है। द सिंपल थिंग, आप इसको याद करके रट करके आगे इतना बढ़ते हो, इतना प्रेशर उसमें लगाते हो, इतना मुश्किलें लगाते हो, लास्ट में हम मिड में आपकी कॉपी चेक करते हैं, और जो सबसे ऊपरी लिस्ट में आते हैं ना वही गलती करते हैं। बिकॉज फॉर ट्राइंग टू लर्न दीज थिंग्स दे मेक देयर माइंड कंपोस्ट बज, इसलिए सम अप हो जाता है, मग अप हो जाता है। इंडिपेंडेंटली एक एक चीज को एनालिसिस करके याद रखो। जब एक एंट्री लिख रहे हो उसी एंट्री पे ध्यान दो, जब एक इसी एंट्री लिख रहे हो यहाँ पे सोचो पैसा आ रहा है तो पैसा अकाउंट बिल्कुल डेबिट होने, शेयर के फाइनल कॉल खाते कैंसिल होना है तो पहले डेबिट हुआ था क्रेडिट होना ही है, कहीं पर भी मिस्टेक नहीं होना है। सबसे इजी एंट्रिया आज शुरू हुआ, इसलिए हम इतना चीज बता दें, उससे आगे टॉप होने वाले हैं, ये चीज हम फिर से आपको नहीं बताएंगे। मेक योर ऑन लॉजिक, ऑन कॉन्सेप्ट, ऑन नोट्स, ऑन स्टोरीज टू रिमेंबर द थिंग्स, टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। Until the moment when you are following to someone else, you are lacking behind that person, you are lying behind that person. Understand the points? Do your own. ये देखो कुछ क्वेश्चन दिया हुआ। ऑथराइज कैपिटल एक कंपनी के हैं 2 लाख रुपया, तो आपको जैसे पता है ऑथराइज कैपिटल से हमको कुछ लेना देना नहीं है। डिवाइडेड इंटू 20,000 इक्विटी से 10 इंच, चलो पता चल गया कि एक शेयर की जो फेस वैल्यू है, जो नॉमिनल वैल्यू है वो 10 रुपया है। आउट ऑफ दिस 15,000 शेयर्स, दैट मींस कि 20,000 हमारा ऑथराइज था सबसे ऊपर परमिटेड, लेकिन हम 15,000 इशू कर रहे हैं, तो ये इशूड होंगे, हैव बीन इशूड टू द पब्लिक, पेएबल रुपीज 2 रुपया एप्लीकेशन का टाइम मिलेंगे, 4 रुपया अलॉटमेंट का टाइम मिलेगा, 2 रुपया फर्स्ट कॉल में मिलेंगे, 2 रुपया सेकंड कॉल में मिलेंगे। सेकंड एंड फाइनल कॉल एक ही बात है। चलिए हम इसको चीज को सम अप करते हैं। 1500 शेयर्स, पास द जर्नल एंट्रीज, प्रिपेयर द बैलेंस शीट, ऑल अमाउंट्स हैव बीन ड्यूली रिसीव्ड। प्रिपेयर द बैलेंस शीट, ठीक हम कर देंगे, कोई बात नहीं। अच्छा रुको एक बार सोचने दो। 2 4 2 2, आगे चलो, यहाँ पे हम काम करेंगे। तो यहाँ पर देखो बाबू, ऑथोराइज कितना था, सवाल को एक बार पढ़ोगे एक बार याद रखोगे। ऑथोराइज हम बार बार जाएंगे, बता रहे हैं, एग्जाम में टाइम बचाओगे। ऑथोराइज हमारे पास था 20,000 इंटू 10, समझ में आ रहा है, दैट मीन 10 रुपया करके 20,000 से। यहाँ पे हम इशू किए, इशूड था 15,000,
इंटू 10 करके। लेकिन एक साथ तो पैसा नहीं मिलता ना, इंस्टॉलमेंट में पैसा मिलता है, आप लोग को पता है ही। 2 4 2 2, सॉरी इसके ऊपर लिख दे तो मेरे पास कुछ एज का ऑप्शन होगा। दो चार दो दो, ठीक है। अच्छा, ये है एप्लीकेशन, ये है अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, ठीक है बाबू। एंट्रिया बनाना है और क्या, जर्नल एंट्रिया। तो आप फॉर्मेट काटोगे आज यूजुअल जर्नल इन द बुक्स ऑफ, जो भी होंगे XYZ लिमिटेड, जो भी कंपनी के नाम है हम नहीं देख रहे, तो आप लिखोगे फॉर्मेट काटोगे। हालांकि हम यहाँ कैसे फॉर्मेट काट सकते हैं, टाइम बचाएंगे। सबसे पहले क्या होगा, एप्लीकेशन मनी रिसिप्ट, वही चीजें तो देख लो एक बार। 20,000 की शेयर था, 15,000 इसी में, 2 4 2 2। हाँ बताओ। सर सर यस, नरेशन लिखना जरूरी है ना? सर हंड्रेड नरेशन लिखना परसेंट जरूरी है? 100%, you will not get even a single mark without having mentioning the narration. Anyone else? ओके सर। चलिए आगे देखो। क्योंकि नरेशन जरूरी होता है ऑडिट पर्पज के लिए, ठीक है। जब आप फार्म में काम कर रहे हो ना, तो जो टाली में और नरेशन लिखा करो, नहीं तो आप लास्ट में ऑडिट में मुश्किलें पैदा होगी, ठीक है। और डिटेल में लिखा करो। हाँ देखो, 2 4 2 2, तो पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव कर देते हैं। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड का मतलब क्या होगा, पैसा रिसीव कर रहे हो ना, तो सबसे पहले पैसा खाता होगा डेबिट, तो बैंक अकाउंट होने हैं डेबिट। टू, किसकी वजह से आपको पैसा मिला, शेयर एप्लीकेशन। टू, यहाँ पे कौन सा शेयर वो कुछ लिखे नहीं थे, चलिए हम इक्विटी शेयर मान लेते हैं। टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, समझ में आई बात, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अच्छा ठीक है, पहले पैसा लिख देते हैं। तो कितना पैसा करके पहले सबसे पहले आपको मिलने वाले, 2 रुपया करके, कितने शेयर्स के ऊपर, 15,000 शेयर्स के ऊपर। तो यहाँ पे 15,000 इंटू 2, ये इस तरह का कैलकुलेशन आप लिख सकते हो, नॉट अ प्रॉब्लम। तो 30,000 रुपया, 30,000 रुपया पूरे नरेशन आपको लिखने हैं। हालांकि हम एक बार लिख करके दिखा देंगे, कहीं कहीं सवाल में आगे जब टाइम बचाने के लिए जल्दी कर रहे होंगे तो हो सकता है हम नहीं दिखा पाएंगे, आप लिखोगे। बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, यहां पर तो लिखोगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 15,000 शेयर्स ऑफ ₹2 each. Understand the point? Being application money received on this much of shares on this each. Understand the point? यहाँ पे आप हैंडराइटिंग मत दिखो, हम सिर्फ लिख पा रहे हैं, कुछ दिखा रहे हैं, वही सबसे बड़ा बात है। बिकॉज इट्स बिट डिफिकल्ट टू have a command on the pen and tablet on the computer. Understand the point? If you have a lot of experience, then you can write. Next it, तो बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ये हो गया। नेक्स्ट इट, जो एप्लीकेशन पैसा हमको मिला, क्या हम एप्लीकेशन के लिए पैसा मांग रहे थे कि उस डिब्बे में डालने के लिए पैसा मांग रहे थे, तो कैपिटल में जाएगा। अब एक बात सोचो, जब कैपिटल में जाएगा तो ये खाता जब खाली होगा तब ना कैपिटल में पैसा जाएगा, दैट मींस क्रेडिट हुआ तो डेबिट होगा। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, बाबू कहां पैसा जाएगा, कैपिटल के खाते में, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अंडरस्टैंड द पॉइंट? यहाँ पे हो गए 30,000, यहाँ पे हो गए 30,000। बीइंग इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी ऑन 15,000 शेयर्स ऑफ ₹2 each ट्रांसफर्ड टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर कैपिटल। समझ में आई बात? तो एप्लीकेशन मनी यहाँ पे ट्रांसफर हो गई रुपया। आगे चलो, तो 3 नंबर एंट्री क्या कहते हैं, अगर डेट होगा तो आप डेट लिखोगे, डेट नहीं है तो ठीक है कोई बात नहीं। 3 नंबर एंट्री क्या होने बाबू, अलॉटमेंट। सुने, जब एप्लीकेशन कोई दे रहा है, ध्यान से सोचो, जब आप अप्लाई कर रहे थे फॉर्म डिग्री के लिए, पहले एप्लीकेशन के साथ आप पैसा दिए थे कि नहीं? यस सर। लेकिन एडमिशन जब हुआ, पहले इंटीमेशन गया, उसके बाद एडमिशन के टाइम आप पैसा दिए कि नहीं? यस सर। दैट मींस ड्यू और रिसिप्ट का मुद्दा अलॉटमेंट में आता है। एप्लीकेशन में तो पहले पैसा मिलेगा, उसके बाद यहां पे पहले ड्यू होगा, उसके बाद आपको पैसा मिलेगा, ठीक है। तो एप्लीकेशन मनी हमको अब करना है ड्यू। इक्विटी शेयर
allotment money, sorry, equity share allotment account debit to equity share capital account, equity share capital account, ठीक है। यहाँ कितना पैसा मिलने वाला है हमको, 4 रुपया करके। जनरली एडमिशन फी ज्यादा होता है, आपको पता है स्कूलों में सबसे एप्लीकेशन फी 100 रुपया 500 रुपया होता है, एडमिशन फी आप कितना भरे थे, 20,000 रुपया 30,000 रुपया, आपकी स्कूलों के हिसाब से लाख भी हो सकता है, हम नहीं बोल रहे वो चीज, 30,000 रुपया भरे थे, फिर इंस्टॉलमेंट पैसा कम होता है, लॉजिक। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में आपको 4 रुपया करके मिलने हैं, 15,000 इंटू 4, 60,000 बनते हैं, 60,000 डेबिट 60,000 क्रेडिट, ठीक है। बीइंग इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी ऑन 15,000 शेयर्स ऑफ ₹2 इज रिसीव्ड। अगर आप कोशिश कर रहे हो हैंडराइटिंग पढ़ने की तो हम खुद भी नहीं पढ़ सकते, आप हमें सुनो, आपको पता है आप लिखो, ठीक है। नेक्स्ट रीड फॉर, जो अलॉटमेंट मनी मिला वो कहाँ जाएगा, अलॉटमेंट मनी हमारे डिब्बे में जाएगा, उस डिब्बे का नाम क्या है, शेयर कैपिटल। समझ में आई बात, अब डाल दो शेयर कैपिटल में, उल्टा कर दो डाल दो, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट हो जाने हैं क्रेडिट। और क्योंकि यहाँ पे पैसा मिल रहा है, अभी रिसीव का टाइम है, पैसा मिल रहा है, तो बैंक अकाउंट होने हैं डेबिट। क्या अकाउंट क्यों नहीं लिखते सर, हम क्या अकाउंट क्यों नहीं लिखते। हेलो सर। यस सर वो 4 ईच होगा ना अलॉटमेंट मनी में। अलॉटमेंट मनी फॉर ईच लिख दो और उसे बहुत बड़ा एक धन्यवाद दे दो, हालांकि कोई थैंक फर्क यू। नहीं। चलो बहुत बढ़िया चीज, शाबाश। आगे देखो, बैंक अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पे देखो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी। हाँ बाबू बताओ, इक्विटी शेयर कैपिटल। सर उसमें फर्स्ट एंट्री में ट्रांसफर होगा ना अलॉटमेंट में, पहले जो नरेशन लिखा। अच्छा नहीं किए क्या हम, नहीं उसमें रिसीव्ड बोले सर आप। हाँ सर, उसमें रिसीव्ड नहीं होगा ना सर, उसमें ट्रांसफर्ड या अच्छा ड्यू होगा ना सर, received अच्छा होना। अच्छा ठीक है, चलिए कहीं ना कहीं आप बहुत छोटा मोटा चीज बता रहे हो, कोई बात नहीं। पैसा पहले बैंक में मिला, फिर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन के हिसाब से इक्विटी शेयर एप्लीकेशन में इक्विटी शेयर को ट्रांसफर हुए हैं। तो आप लोग शायद कहीं कह रहे हो कि या नरेशन में कुछ लिखे हुए हैं, तो यस सर, नरेशन में आप रिसीव्ड लिखे हैं। अलॉटमेंट। उन्हें ना जब पता, मतलब चीजें जो फर्क नहीं पड़ता, वो चीज आप खुद से करेक्ट कर दो, ठीक है। तो यहाँ ऑब्वियसली ट्रांसफर्ड, ओह हम लिखे हैं, देखो ये ट्रांसफर्ड बोले होंगे अलग से, ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल ना, पहला तो पैसा रिसीव हो चुका है, तो पहला एंट्री में रिसीव्ड लिखो, सेकंड में ये लिखे हैं ट्रांसपोर्ट, ठीक है, बोल दिए होंगे। अलॉटमेंट वाला में सर सेकंड थर्ड एंट्री अलॉटमेंट वाला। अच्छा चलिए, हाँ थर्ड वाला एंट्री में, हाँ अच्छा बीइंग इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड, अच्छा चेंज कर दो, कोई बात नहीं, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट ड्यू लिखो यार, ड्यू एंड ट्रांसफर, ठीक है, मेक इट करेक्ट। अच्छा कोई बात नहीं, एंट्री में गलत नहीं है, वो कह रहे हैं कि नरेशन में सर आपको चीज रिसीव्ड लिख दिए, हालांकि रिसीव्ड नहीं हुआ है, बहुत सही बात, लॉट ऑफ थैंक्स। यहाँ पे लिखो बीइंग इक्विटी, हाँ इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू एंड ट्रांसफर टू कैपिटल, 100%. You should turn on the mic and you can raise your voice, you can ask anything. Understand the points? And many a times क्या होता है, हमारा क्या होता है, हम बता दे रहे हैं आपको चीजें क्या होता है। इससे आगे वाला स्लाइड क्या होगा, इससे आगे क्या आने वाला है, वो मेरा दिमाग में है, क्वेश्चन क्या पढ़ के आ रहे हैं, वो चीज हम सोच रहे हैं, यहाँ पे समझा रहे हैं, यहाँ पे कुछ चीज लिख रहे हैं, मतलब साइमल्टेनियसली पकड़ करके चलो कि 5 चीजें साइमल्टेनियसली मेरे दिमाग में चल रहा है, कुछ बोल रहे हैं, कुछ कहीं पे लिख रहे हैं, चल रहा लेकिन सही आपको पता है, और जो बोल रहे हैं हो सकता है गलत लिख रहे या फिर गलत लिख रहे, तो बोल रहे कुछ चीज, ऑब्वियसली यू शुड मेक ए करेक्शन ऑन दैट, वेरी मच गुड। ना देखो बाबू, पैसा ये ड्यू हुआ, अभी आपको मिलने वाला है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर, ये फिर से अच्छा कैपिटल फिर से, क्योंकि वो कुछ आपसे बात कर रहे थे ना, इसलिए कोई बात नहीं, हमारे पास इरेजर होता है, इसको कोशिश करते हैं, इसको हटा देते हैं। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है, अभी पकड़ो, बैंक अकाउंट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, कितना पैसा बाबू, 60,000 आप डिमांड किए थे, 60,000 रुपया आपको मिल गया, ठीक है। आज पर लिख दो, नरेशन लिखो, अरे यार, बीइंग इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, आप लिखोगे खुद से, ऑन दिस मच ऑफ शेयर एट द रेट ₹30, ये चीज आप लिखोगे, ठीक है। हाँ आगे जो प्रॉब्लम होगा, दिक्कत होगा, बताओगे, 2 4 2 2, उससे आगे देखो। अच्छा तो फिर ये चीज हमको, इस चीज को फिर से इरेज करना पड़ेगा, जो नहीं लिखे हो कोई बात नहीं, फ्लो तो आप समझ ही गए हो। नेक्स्ट वीक नंबर 3 4 5, फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, ठीक है, तो लिखो इक्विटी
शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अभी एक बात ध्यान से देखो, जब एप्लीकेशन की बात करते थे तब भी इक्विटी शेयर कैपिटल बोल रहे थे, जब अलॉटमेंट की बात था तब भी इक्विटी शेयर कैपिटल, अभी भी इक्विटी शेयर कैपिटल। क्यों ना? कैपिटल की जो खाता है वो सेम है, आ रहे हैं जो वो अलग अलग है, कभी एप्लीकेशन के लिए आ रहे हैं, कभी अलॉटमेंट के लिए आ रहे हैं, कभी कॉल्स के लिए आ रहे हैं। इसके या एप्लीकेशन अलॉटमेंट कॉल्स अलग है, लेकिन ये फिक्स्ड है शेयर कैपिटल अकाउंट। समझ में आई बात? तो हर एक जगह में ऐसा नहीं लिखोगे कि फर्स्ट शेयर कैपिटल, सेकंड शेयर कैपिटल, ऐसा नहीं होता है। शेयर कैपिटल फिक्स्ड। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स? छोटा छोटा चीज जो है सबको उतना चीज मतलब उसमें क्लैरिटी नहीं होता है। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स? आगे देखो, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू दिस मंथ, 2 रुपया करके, तो यहाँ पर 30,000 है, 30,000 है। नरेशन लिखो, बीइंग इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू एंड ट्रांसफर। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स? नंबर 5, 6, तो अभी पैसा मिल जाएंगे आपको। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पर देखिए आप लोग, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ठीक है बाबू? जहां पे लिखने में सिली मिस्टेक होगा आप हमको बता दोगे। यहाँ पे देखो, बीइंग इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड, कुछ भी पैसा बाकी नहीं है, कुछ भी एडवांस नहीं है और हमको मिल गया। तो पहला एंट्री फिर से हम रिसाइट करें, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट 30,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल 30,000। बाबू ठीक है, पैसा खाता 30,000 टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 30,000। ठीक है, अच्छा आगे का चलो। सेकंड कॉल कुछ था 2 रुपया का, 7। तो यहाँ पर लिखो, इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। बाबू 2 रुपये का मतलब कितना होता है? 15,000 शेयर के ऊपर 30,000, 30,000, क्योंकि 15,000 शेयर हमारे पास है और 2 रुपया हम इस किस्त में मांग रहे हैं। तो पैसा किससे मांगोगे को? 2 रुपया एप्लीकेशन के टाइम, 4 रुपया अलॉटमेंट के टाइम, 2 रुपया फर्स्ट कॉल के टाइम और 2 रुपया सेकंड कॉल के टाइम और फाइनल कॉल के टाइम। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स? तो यही बात होता है। तो हर एक चीज में आपको 15,000 शेयर के ऊपर काम कर रहे हो, तो 15,000 इंटू 2, 15,000 इंटू 4, 15,000 इंटू 2, 15,000 इंटू 2। सुनिए, जिसका एक्चुअली क्या हो कि सबका हो सकता है +2 कॉमर्स होगा भी तो कंपनी अकाउंट्स पढ़े होंगे या नहीं पढ़े होंगे, तो चीजें उनको भी पता होना चाहिए। बीइंग, यहां पर देखो, इक्विटी शेयर सेकंड कॉल मनी ड्यू, ड्यू हुआ क्योंकि मांग रहे, और ये पैसा कहां जा रहा है बाबू? उस हुंडी में जो हम बनाए हैं, होता है ना नड़िया हुंडी, टू ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। ठीक है बाबू, आगे चलो। 8 नंबर, जो पैसा आप ड्यू है उसको रिसीव भी तो करना है। 1 महीना के बाद, 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद सारे पैसे मिल जाते हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट। ठीक है, आपको पैसा मिल गया। कितना पैसा? जितना डिमांड किए हो, मान लेते हैं मिल गया, अब नहीं मिला तो अगला चैप्टर अगले क्लास में बताएंगे। ठीक, तो यहाँ पे फिर से नरेशन लिखोगे, बीइंग है ये इक्विटी शेयर सेकंड कॉल मनी रिसीव्ड, फास्ट एंड फ्यूरियस बाबू, जल्दी लिखो, बीइंग इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड ऑन दिस मच ऑफ शेयर एट दिस मच। ठीक है, ये आप चीज लिखोगे यहाँ पे फुल स्टॉप। ठीक है ना, ये बात था। तो जो सवाल के हिसाब से थे, नेक्स्ट। ठीक है, तो अभी तक हमको कितना पता चला बाबू? अभी तक हमको कितना पता चला कि आप टाइप्स ऑफ शेयर कैसे होते हैं। ठीक है ना, टाइप्स ऑफ शेयर क्या होता है, प्रोविजंस क्या है, और इशू ऑफ शेयर्स कैसे होते हैं, इशू ऑफ शेयर्स कैसे होते हैं। समझ में आई बात? ये कुछ चीज लिखी है, हमको पता नहीं है। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर दिए हुए हैं, क्वेश्चन नंबर दिए हुए हैं 2, 3, 4 केपी बुक्स का, ये चीज आप असाइनमेंट करोगे। असाइनमेंट आप कैसे दिखाओगे वो हम बाद में बताएंगे। 2, 3, 4 करोगे। समझ में आई बात? बताओ सर ठीक बुक है नहीं है। बाबू, सुनो। हाँ ठीक है, ये कौन था? झा, सुमंत झा। यस क्योंकि सर। हमको पता, सुनिए, हम शुरुआती दिन से हम बता देंगे कौन सा चावल का कौन नहीं। बाबू इरिलेवेंट क्वेश्चन ना, किसी से आप फोटो मांग सकते हो, दुनिया टेक्निकल है, तो किसी से आप फोटो मांग सकते हो, मांग करके आपके क्लास में ग्रुप में छोड़ दोगे, जो आपके प्राइवेट क्लास ग्रुप है उसमें छोड़ दोगे। कोई हमको प्लीज 2, 3, 4 शेयर कर दो, या फिर कोई किसी के पास एक बुक होगा, आप
अपने अंदर उतना कॉपरेशन होना चाहिए, वो फोटो छोड़ देगा और उसी को आप कॉपी में डिपिक्ट करोगे और जब हम कहेंगे उस चीज को आपको कैमरा में हमको दिखाना है। असाइनमेंट बस 2 3 4 नंबर क्वेश्चन सब करोगे, जो रेगुलर स्टूडेंट हम देख रहे हैं उनको फिर पूछे जाएंगे। ठीक है, यही बता तक हम आपको कुछ स्टार्टअप दे रहे थे, कुछ सिखा रहे थे, चीजें आगे तेजी में पढ़ाते जाएंगे। लॉट ऑफ थैंक्स। ओके, this is Dhiren Karmata, staff in commerce, always for your help. This is my number, Facebook. This is my updated email ID. Okay, personal email ID. Don't think that my official email ID. Note down. pgcom@gmail.com. gmail.com. दैट मीन्स क्या pgcom@gmail.com। इसमें आप क्या करोगे बता रहे हैं हम। इसमें आप सारे वो जो भी डॉक्यूमेंट भेजने के लिए बोला जाएंगे ऑफिशियली, वो आप इसमें भेजोगे। आप जो कुछ पूछना चाहते हो, आपका कोई पर्सनल असिस्टेंट होगा, कोई हेल्प होगा, कोई भी फोटो भेजना चाहते हैं कुछ चीजें, या फिर कभी और कुछ चीजें पूछना चाहते हो, बुक्स हो, असाइनमेंट हो वगैरह कुछ पूछना चाहते हो, तो आप इसमें आप भेज सकते हो commerce@dhirensar.online। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। हमारे न्यू वेबसाइट आने वाला है इस जगह में dhirensar.online। अंडरस्टैंड द पॉइंट। यही बात है, आगे का बहुत लंबा प्लान है, कभी हम बताएंगे आपको फुर्सत में। तो देखो यही बात है, कोई बात नहीं बाबू, लॉट ऑफ थैंक्स ए लॉट। लेकिन आपको एग्जिट नहीं मारना है, जो मार दिए वो बुद्धू निकले बस, और जो होशियार थे रोल नंबर लिख दिए। तो अभी थैंक्स ए लॉट सचिन, थैंक्स। ठीक है, थैंक्स रोशन, थैंक्स। जय हिंद बाबू, योगे थैंक्स, गुलशन थैंक्स, सुस्मिता थैंक्स। अच्छा, तो थैंक यू बाद में बोल करके आप एक छोटा काम कर दो, रोल नंबर जल्दी लिख दो। जितना भी स्टूडेंट है उनका रोल नंबर लिख दो, और जैसे कि हम बताए थे, ठीक है ना, हम थोड़ा कम झूठ बोला करते हैं। एवरीथिंग इज बीइंग रिकॉर्डेड, सो यू हैव टू मेंशन योर रोल नंबर्स व्हिच विल बी रिकॉर्डेड एंड योर अटेंडेंस विल बी काउंटेड। वो भी ऑनलाइन, हमको कोई रजिस्टर मेंटेन नहीं करना पड़ेगा। बाद में आप जाकर के ये नहीं कह सकते सर हम तो ऑनलाइन आते थे, आप रिकॉग्नाइज नहीं करोगे, उसके वजह से हम प्रॉब्लम में आएंगे। क्यों? आप लिख करके दो, लिख करके दो, और ये मशीन भी अगर गलत थोड़ी कहेगा। एवरीथिंग इज बीइंग रिकॉर्डेड। फर्दर फाइनली अगर कुछ क्लेम करना चाहते हो उसमें रिकॉर्ड दिखा जाएगा, आपका अटेंडेंस नहीं है, नहीं है, यू विल बी ट्रीटेड अकॉर्डिंगली। आपके अटेंडेंस से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारी ओर से कह रहे आपकी अटेंडेंस से मतलब आप चाहे कुछ भी प्रॉब्लम हो कॉलेज में, आपको बिल्कुल 100% आप एग्जाम दे सकते हो, 100% असिस्टेंस मिलेगा। 100% आप पढ़ो या ना पढ़ो, अटेंडेंस से मतलब भी आपको बहुत सारा असिस्टेंस मिल जाएगा। यही सरकार कहता है, यही डिपार्टमेंट कहता है। Another 2 minutes you have to mention your roll numbers. Keep writing, keep writing. Those who have mentioned, you may leave the class. You may disconnect. Yes, having any query, you can ask. नेक्स्ट क्लास सुनिए, जब तक आपको नोटिस नहीं मिलता है तब तक नेक्स्ट क्लास नहीं होगा। प्रायर नोटिस आपको नहीं मिलता है तो नहीं क्लास होगा। ऐसे भी आप थोड़ा सा वेट करने में कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप देख रहे हो कहीं पे हम नोटिस नहीं भेजे तो नहीं क्लास होगा, लिंक नहीं भेजे तो नहीं क्लास होगा। बाय डिफॉल्ट हम बता दे रहे हैं कल क्लासेस होने की चांसेस नहीं है, क्योंकि कल हमारा ड्यूटी नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा की नया रूल्स के हिसाब से 3 डेज कंसेक्यूटिवली हमारा ड्यूटी रहेंगे, 3 डेज ड्यूटी नहीं रहेंगे। बट फॉर द सेक ऑफ माई स्टूडेंट आई ऑलवेज ट्राई माई बेस्ट टू कंडक्ट द क्लास। सो हम घर से कल क्लास कर सकते हैं, कल नहीं होगा, परसों कर सकते हैं, सैटरडे कर सकते हैं, ठीक है, घर से। उसका नोटिस आपको मिल जाएगा। इंटरेस्टेड पार्टिसिपेंट में ज्वाइन द क्लास, जो इंटरेस्टेड नहीं है वो ऐसे भी जिंदगी में कोई इंटरेस्टेड वैसे भी है ही नहीं, ठीक है। आगे का रोल नंबर लिख दो, सब एग्जिट हो जाओ। थैंक यू जितेंद्र, ममता, ओके। प्रभाती, प्रभात, थैंक यू। कानीज, ओके। हाँ, तो जो गलती से रिमूव हो गए थे वो ज्वाइन हो करके रोल नंबर लिख दो। लेकिन ये चीज
अभी हो रहा है आज की क्लास में, आगे नहीं होने वाला है। जो पार्टिसिपेंट नहीं थे क्लास थ्रू आउट द क्लास, उनको हम सिस्टम बंद कर देंगे और रिज्वाइन नहीं कर सकते हो और अटेंडेंस नहीं दे सकते हो। एवरीथिंग आई हैव, एवरीथिंग सिस्टम। एक लाइन बंद कर देंगे तब नहीं कर सकते। ठीक है, लॉट ऑफ थैंक्स। चलिए डिस्कस। हेलो सर।